Good morning, friends. Welcome on this fourth show of our Super Achiever. Today we have our Super Achiever, CA Mamta Raut from Aurangabad. Welcome, madam. It's our Namaskar, pleasure to Mataji. learn your to listen your story, struggle story, and then success story. We are very thankful to you. You accepted our invitation and joined. We also welcome our Central Council member, C.A. Chandrasekhar Chitle sir. Welcome, sir. Namaste. Thank you for Namaste. coming on and will like to hear your words of appreciation for our super achiever. We have a regional council member, C.A. Sushrut Chitle sir. Very Namaste. supportive, always encouraging. I know sir since 2011 when I passed, always supportive to us. Once we have called, immediately sir has accepted our invitation. Thank you, Sushrut sir, to come on our show. Now would like to request Vishal Bhai to have a few words for Mamta Raut ma'am, Mamta ji, and after that would like to request Chitle sir, both the Chitle sir, to have a few words. Over to you, Vishal Bhai. Thank you, Viraksha, for this opportunity. This is indeed a very noble cause which you have come up with, noble idea for showcasing such hidden talents in our profession. I would also like to thank Chandrasekhar Chitle sir for accepting our invitation in such a short notice. I would also like to thank Sushrut sir. He's very approachable. I can just call him up anytime and very dynamic professional, and even he accepted our invitation in such a short notice. And what to say about our today's guest, Mamta Raut ji, from Ahmednagar to Aurangabad, from a person who used to sell masalas in small packet, now a qualified chartered accountant handling such a big institute of MIT at Aurangabad, and even there are multiple branches. Despite lack of vision or no vision in one eye, she qualified her CA final in first attempt. Also, the struggle behind that she took almost 4 years to clear her P2, but she did not give up, being from a vernacular medium. So there are multiple stories which we will discuss during the show. Meanwhile, I would like to request Chandrasekhar sir and then Sushrut sir to give some words of appreciation for our today's guest. Over to you, Let's Chandrasekhar. Sir, Sushrut. just Let's before Sushrut that, speak first. यस सर. सो सर जब कोई भी डिसेबिलिटी या कुछ होता है उसमें से जो एकदम क्रिटिकल होता है वो होता है आईज का. विजन ही नहीं होने से बहुत ज्यादा मुश्किलें आती है लोगों को. तो इट इज अ वेरी क्रिटिकल और वो बताना चाह रहा था. सो वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सुश्रुत सर फर्स्ट टू हैव अ वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन फॉर आवर सुपर अचीवर. Thank you. First of all, I would commend the exceptional work being done by Viraksha, Vishal Gala, and the entire team. Because it is one thing for us to just come and say a few words of appreciation, but I think it requires a whole lot of effort for somebody to organize this kind of a seminar or this kind of a webinar on a mass basis. So first of all, congratulations to Virag and Vishal for really taking this along and consistently doing it over a period of time. It is truly my privilege, I think, to be here because this is something which is fabulous. I think somewhere at the back of the mind, I always feel that what is the greatest fact of being a chartered accountant, and it is that I think all of us have passed this unique exam where everyone puts in a lot of effort. And I think what more can be said about that than our super achiever today, CM Mamta Raut, who has put in a lot of effort. And more than the effort, I think it is her ability to hold on to her effort, which has really made sure that she passed through. I've heard a saying some time back which says that you do not need eyes to have a vision. And what more or what I mean, I cannot think of a more apt situation than this, where Mamta, in spite of being unable to see through one eye, has been able to consistently hold on, pursue her course, and pass the CA exam. On a lighter note, we always say that where there is a will, there is a way, and after every November, there is a May. But this is okay for somebody after passing the exam. But when you are through that whole process, I think each attempt, as you keep on growing ahead,
you really never know what is it that you are facing or where is it that you are typically lacking. And I think at that point of time, it is the sheer temperament, the courage, the determination, and the absolute hard work that one puts in that really perseveres and that pushes one beyond that line. So I think great work done by Mamta, and wish you all the best for your life ahead. And I think again, I'm just a privileged person to be participating here. One small snippet that I would like to give is that I think even in the institute, there is something. I mean, there is the road is just long, and I mean in the sense that you have a long way to go. In the sense that there is much more that you will still achieve, and I'm confident that you will achieve. And I'm only reminded of a past Central Council member in the institute who was blind, and while being blind, he actually served the whole process of being a Central Council member. So I think the inspiration of people like you and others who really show ordinary people like us how privileged we are, and sometimes how easily we whine about or complain about things without realizing how much privilege we are. So I think once again, thank you so much for being here, and thanks to Virag and Vishal for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Virag bhai, you are on mute. Apart from she is advisor in MIT, she has a hundreds of clients also, where she is serving for the income tax return and other small assignments. So would like to just mention that as well. Now would like to request Chandrasekhar Chitle sir, our Central Council member. Sir, just want to mention that our first achiever, Akula ji, Nagarjun Akula, he is also from Aurangabad, and he know the Mamta madam from last 8 years. So he also told that our policy, our ICI policy for the students is so wonderful, and because of that only that Nagarjun ji becomes CA today. That concession in fees or no fees kind of thing, or that motivate the that group of people. So just want to mention that as a CCM or whatever leader we have, they have made a good policy for the physically challenged as well. So over to you, Chitle sir. Yes, thank you. And as former President Abdul Kalam ji said, chartered accountants are partners in nation building, so we have to live up to his expectation. Before I speak, I would like to just interact a couple of minutes with Mamata. Mamata, फिलहाल आप क्या करती हो? Yes, sir. What are you doing nowadays? Because I heard that earlier you were selling masalas, and I'm sure that those must be tastiest masalas, because on the way to Ahmednagar, we always have that Saradwadi, that misal. So I thought that maybe whether you prepare those masalas. But now I am only CA, and we get job as an internal auditor at MIT College. Okay, and earlier you were preparing masala. And yes, yes. Before achieving this degree. Yes, yes. Glad to. I was doing that business. Okay. But so now I'm. Still, yes, you have the know-how, no? Okay. Thank you. Yeah, just I wanted to understand. And dear Vishal, Virag, the team members, and co-speaker Sushrut, how happy I am on this Sunday morning to join this particular webinar. So those dignitaries on the screen, off the screen now, we have to say, let us really hear the success story of Mamata. As we are aware that this chartered accountancy is perhaps one of the toughest course, not in India, but the entire globe. Even those who are not able to qualify as a chartered accountant and there is money in their wallet, they opt to go abroad and qualify as a chartered accountants, but not so in India. This is one of the toughest examination. So even if you keep your eyes wide open, it is not possible that you will qualify. And that's what our result demonstrate, that it is only 10 to 15% is the passing percentage.
and then those who are not able to qualify, unfortunately, also opt out. So in this background, the success achieved by Mamata is really commendable. I would say that now she has become a poster girl for the purpose of our profession, and I will certainly take her to our council. And generally, we want to demonstrate the students. यार आपको आप बोलते हो कि मुझे 198 मार्क्स मिल गए, 197 मिल गए, अभी मैं क्या करूं, मैं बोर हो गया, मैं अभी छोड़ देता हूं. No, here are the shining examples that you once when you continue with perseverance. So we keep on talking of perseverance, patience. Chartered accountant should have patience, but then we have to also demonstrate. And if we demonstrate, it becomes easily understandable. And I'm glad that Mamata comes from small two-tier cities like Ahmednagar, like Aurangabad, where when she qualified, maybe the facility for the teaching may not be, or the coaching may not be all that up to the mark. So the challenge which we face in cities like Pune, Mumbai is different, but it is much more in these cities with want of really guidance available. Now, as compared to that, if you look at today's times, now in earlier, perhaps this pandemic, as this is one silver age of this dark cloud, that yes, we are able to interact. Otherwise, we would not have been able to interact with Mamata and Nagarjun and the likes. Because of this webinar, it is not only from Aurangabad, from Nagar, from Pune, from Mumbai, but from across the country, wherever this is possible to view. One will be able to definitely understand this success story. And not only that, supposing some viewers are not able to particularly log on, or they were not aware that this particular type of program has taken place, maybe recording will be there, and that would definitely, I think, you will be sharing on YouTube. So even in days to come, one will really be able to listen what Mamata has to advise, and how we can take forward, I won't say her story, because this is the fact. So how can, as a chartered accountants, we more believe on true and fair facts rather than stories. So if there are stories we discount, so we are presenting, and Vishal and Viragar and his team members are really presenting this fact before the audience. Now, as far as students are concerned, the time when Mamata passed and today's times, there is a marked difference. As I said that there was paucity of guidance in this tier 2 cities. In tier 1 cities also, there was hectic journey. You have to, like Mumbai, take local, attend coaching classes, etc., etc. But now this webinar has really transformed the profession more. From the day this lockdown has started, I think our institute and the enthusiastic chartered accountants like today's organizers, they have not looked back. They have also not kept their pen down. They have actually kept their vision on, and they have organized a number of webinars. And I'm sure that in last 100 days, every chartered accountant, every student must have attended at least 200 hours. And that is a volume of knowledge that input has come. And now really everybody is awaiting that once the lockdown opens up, how to apply that knowledge. So coming to this students fraternity, the developments are now books, etc. Earlier we used to repurchase, read. Now those were costly books. It is not possible that besides study material you afford those books. Maybe some used to afford, some may not be able to afford. But let me inform you, and most of the students should be aware, that the entire knowledge bank, whether it is study material, whether it is any article, whether it is any booklet, everything has been uploaded on the digital platform by the Institute of Chartered Accountants of India. And that is not all. If supposing capital gains, in case of capital gains, one wants to know exemptions, and there are 6 lectures on exemptions by 6 different speakers, maybe from Delhi, maybe from Kolkata, Mumbai, Pune, Aurangabad. So there are 6 different lectures. So all those lectures are also uploaded on the digital platform. So if you want to listen a particular speaker, you can go and definitely listen that speech. And that facility is also made available on our digital hub. And all this is free of cost.
So as compared to the years in which Mamata and Nagarjuna has passed this, qualified this examination, I think today the institute has come to your doorsteps, and definitely the students, whether you are even from village, if the connectivity is there, and I'm sure that everybody has got cell phones, smartphones, so connectivity is there, and you are able to receive all this guidance which is available at experts level. It may be study material which is available. That is one. Secondly, because of lockdown, we at Board of Studies had continuous meeting and thought that now it will be difficult for students, particularly from small cities, to come to bigger city and really attend those coaching classes. So how to do that? And then a web series was started, and on this web series, eminent personalities like Girish Ahuja, like T.N. Manoharan, all of them have really coached the students. And this particular series is going on now, because it was to take care of those examinations of May 2020, which are now slated on 29 July 2020 onwards. To take care of revisionary batches, those coaching classes were organized. Recently, we had a meeting of Board of Studies, and it is decided that maybe this will not be an ad hoc feature to take care of this lockdown era, but even if there is opening up, let us continue this particular initiative, for a simple reason that each student who has joined the CA course, whether he is from metro city or whether he is from a small village, he deserves world-class advice, world-class knowledge, and that would be available if it is organized centrally. Maybe we can invite any luminary which student wants, and it is not that we are going to select that, okay, this should be the faculty, that should be the faculty. If the student selects that, okay, this particular faculty or the chartered accountant, or even say in appropriate cases there may be advocate, there may be some other professional, they are good for some of our topics, we will definitely take care and invite that. Only at the moment the management committee decision is that for the purpose of engaging faculty for these coaching classes, he should not be associated with any private coaching class for obvious reasons. So with this limitation, even if students want today that, okay, we want this particular lecturer, we can definitely try hard. And this particular web coaching classes by the Board of Studies would be an ongoing initiative. Secondly, it is at times stated that there are number of errors in the institute study material. So the institute has made appeal to all students, all those who read the study material, that if you find out any error, any mistake in the study material, you point it out to Board of Studies. You can point it out to council members like maybe Sushrut or to me, and we will definitely pass it on to Board of Studies. And we are waiting till the July end, and once the July concludes, we will take home all these suggestions, whichever are found appropriate and correct. They will be appropriately rewarded also for the purpose of who is the person suggesting, and we will try to improvise all the study materials, because we don't want to compromise with the quality. So number of initiatives are being taken up, and that is the reason that our course is a world-class course. If one qualifies as a chartered accountant, his demand is not confined to the India or to the adjoining SAARC countries. Even if advanced countries like USA, Europe, Australia, New Zealand, Japan, everywhere chartered accountants are working, and we have witnessed that chartered accountants are working across the globe, and that's why it is decided that we should open up offices across the globe. What is the advantage? That if the offices are open across the globe, maybe if in a particular city, normally we require about say 25 members to open a chapter, etc. But we have said that, okay, we can, if there are 3 members, with them we will start, we will designate an office. We will not incur a cost, but we will designate somebody's residence or something like that as a mailing address, as an address for communication. The obvious advantage is that once when you know that in a small city abroad there is a CA office, they will definitely strive for employment for other chartered accountants. So if anybody from India wants to go to that city where he is not finding access, if he sees that yes, institute establishment is there, maybe virtual establishment, he will be provided adequate guidance. So on qualifying also, these initiatives are being taken by the institute.
As you are aware, from 1st of July, the new code of conduct will be ushered in. That will also take us on world map. And more so, as far as the students like Mamata who are concerned, I am sure that on this platform, they are sharing their views, they are sharing their inspiration stories. But let us take them to the national level through Board of Studies. So maybe I'll personally talk to Chairman, Vice Chairman, Board of Studies, and we will definitely think that how we can accommodate them. And it is not really accommodating them, they accommodate us for the purpose of presenting by way of example that even if it is a tough course and even if you are having some physical challenges, you are able to qualify it if you are mentally prepared. And for that mental preparedness, this particular exercise would be of landmark and of great value. Sushrut mentioned about Ashwin Bhai Shah, who was member of council, and he was blind by both the eyes. He is practicing not only auditing, etc., but let me place on record that he is arguing cases before the tribunal. You know, when you are arguing cases before the tribunal, you have to be updated with all circulars, law, whatever are the latest judgments. So he is able to do that. So look at the capacity which people can develop. And I'm sure the same fate will follow with Mamata also. And we will definitely on some webinar say that, yes, if you know Mamata, this is her abilities, and I'm waiting for that occasion. Let me tell you, I was Mamata, I was member of a group. It was in certain forum, an issue was raised. If a chartered accountant is there and he is blind, so should we allow him to carry out a test function? Because if you cannot see the accounts, if you cannot see the vouchers, how he should sign and certify that yes, these are true and correct facts? Is it possible? So a group was appointed, and I was fortunate to be a member of that group. So we interviewed number of blind chartered accountants, and there were a variety of blind chartered accountants. One category is since birth they were blind. Somewhere for some years of age, maybe till studenthood they were able to see. Thereafter they lost their vision, or the vision was impaired, and then subsequently it was completely blank. So whether we should allow that, and then we interviewed them, and we were really astonished with the knowledge, with the wisdom that was available at their disposal. And to the committee, the chartered accountants point blank asked the question that if there is a company having say 100 crore turnover, say 1000 crore turnover, you as a chartered accountant having, I won't say vision, having ability to look by both the eyes, then how you are able to certify? If the entity is having say 10 branches or factory and at a different location, then obviously the people answer that yes, we depute our team, then the team does the work, they prepare their notes, and we review their notes, and based on that review we form an opinion whether it is true and fair, or whether any qualification or modification is warranted in audit report in certificate. So he said that if you are doing that, maybe only thing is that you are having eyes, I am not having eyes, so I also do the same thing. I depute my team, then that team does all this verification, etc. And after the verification is done, their reports come, I do review those reports, and based on my review I am able to come to the conclusion whether it is true, fair, whether the certificate is appropriate. So whatever you do with the facility of your team, I do with the facility of my team. So why you should bar me? And we were really very happy that yes, as far as these blind chartered accountants are concerned, they have more vision, and there is no right to anybody to discriminate them from any other chartered accountants. Well, the nature has to an extent being unkind, but then that does not mean that we should carry forward this particular baggage. And they are really proving, it is not that we are obliging them, they are really demonstrating this by way of their abilities, by way of their intellect. Now, since Mamata is engaged in say internal audit, advisory capacity, I am sure that the institution now, she is doing it for a number of years, I was told. So I'm aware that if she is doing it for 1 year, 2 years, maybe out of compassion one may say that okay, you can carry out this topic.
But if her performance is not as per quality, then definitely people will not be amused in continuing her services. Maybe they will decently tell that now, okay, we are having this policy of rotation, this, that, and now somebody else will do it. But that has not happened. Why it has not happened? Because maybe if at all we say so, the appointment may be per accident, but continuation never happens by accident. It happens only by demonstration of quality. And Mamata, I am sure that you must have demonstrated your quality. You must have demonstrated everything what a chartered accountant should do while discharging your functions. And that is why you are continued as a retainer, maybe doing tax work, maybe doing internal audit. So this also is an encouraging story, because even after qualifying, at times the members are at crossroads whether you should do service, whether you should do practice, what you should do. So even there also, with your background, you have opted to become or opt for practice. And not only you are doing small household practice, but you are doing fairly big practice as compared to say Aurangabad and those cities. The numbers that you have lamented are definitely encouraging, and they are definitely like any other chartered accountant, or maybe more than that. So this particular zeal of doing practice and really continuing rendering services to the same set of clientele, of course with an increment, definitely underlines the fact that yes, you are also delivering quality, and that is the hallmark of our profession, and you are really carrying the baton of our profession from the front. I wish all you success to you, and I'm sure that this should not be an ad hoc event. Maybe we should keep on coming back to you with your achievements in intervals of couple of years, so that you will have much more facts to share with the professionals. And once again, I am thankful to the organizers for really taking up this particular distinct topic, and really exposing this talent, these abilities to the students, to the members, and not only to them, but also to the general public. Because in general public also, we are seeing that if it is just 3 months of 100 days of pandemic, and people are trying to succumb to the pressure, maybe they are committing suicide. And here we are having this particular say limitation for a number of years, 10 years, 20 years, and still it is not that we have succumbed to the pressure, but we have fought with the pressure and we have conquered it. So this is the message that merely looking at Mamata everybody will get, and I'm sure that they should get, and not only they should get, but they should emulate her, and then only this success story would be accomplished. Thank you everybody for joining, and thank you Mamata for really coming, and we are definitely awaiting for the unfolding of the events that you are telling. But let me tell you, chartered accountants are good at business, at industry also. There are a number of chartered accountants, like in case of construction, Niranjan Hiranandani, he is also a chartered accountant. So I would also request that if time permits, maybe you can start your masala business also, advising maybe any other partners, any other directors, and definitely on way to Aurangabad, we will, because we are fond of hurda, which is there in Aurangabad. So whenever we come for that, maybe you can offer masala also to everybody. The spice in practice, definitely you are offering, but spice for food also, I think you will be able to do that. Thank you and good day. Thank you so much, sir, for your words of appreciation, and also inform about the working of council, and you will also giving the assurance that you will take up Yes. the matter with the board of studies and encourage more students with the Mamta and other our super achiever kind of thing. Now Yes, would sir. like to request Vishal to invite Mamta's mentor, basically Ravindra Chhajed, from where she got the inspiration and all the learnings for the chartered accountancy and the basically accountancy also, because she is started CS journey after the age of 24. Because I mean nowadays 24 is the, I mean after that nobody is trying to study also. That is this is the limit or kind of, and she started after 24. So she is a real inspiration. So we want to see that who is the behind that inspiration. So would like to request Vishal Bhai to invite Ravindra sir.
Okay. Thank you, Only Chandraji. Vishal Yes, bhai, sir. only I have to Yes, sir. attend that institute's international webinar. So kindly allow me leave. No Yes, problem, sir. sir. Yes, Thank you so much, sir, for the sharing Yeah, the initiatives and your time, sir. yeah, yeah. Thank you. Vishalji, Sushil, I sir, will also you continue also as have an some attendee. commitment. Yes. I will also yes, sir. continue Yes, as an attendee so that the focus can remain on Mamta. Yeah, thank you. Sure, sir. yes, Sir, sir. thank you, sir, for your time. Thank you. Yeah, so I would like to now talk about Ravindra Chajet sir. So Ravindra Chajet sir was the first employer of Mamta ma'am, who taught Mamta ma'am basics of accounting from depreciation and how to build the accounts basically. So do we have sir online? Chajet sir? राजेश सर आपका कैमरा नहीं आ पा रहा है, एक बार कोशिश करोगे? हम आपको देख हाँ, नहीं पा मेरा रहे। कैमरा नहीं ऑन हो रहा है। हेलो, नो आवाज प्रॉब्लम आ सर, रही है? नो प्रॉब्लम, आवाज हेलो, क्लियर है सर, आप बोल सकते हो सर, आवाज आ रही है सर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ सर, तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ विशाल भाई और विराट भाई फॉर होल्डिंग सच अ वंडरफुल वेबिनार which are highly motivational and inspiring, an entire team of organizing committees. So far as the Mamta journey to CA is concerned, it is very close to my heart. Reason being, first reason, that I used to closely monitor her during her CA days. Her progress I used to closely monitor. And second was that several times she used to give her credit of becoming CA to me. Always I used to give her example to all aspiring students, CA aspiring students. She comes from the family having background that earning for livelihood is the top priority and education is the last priority in her family. Under the situation, one can imagine how much difficulty she would have faced in completing her career. She used to come to office almost 7-8 kilometers away from the village and going back again 7-8 kilometers away. How much it would be difficult for a girl to attend the office and going and coming far away places. I still remember her day one in the organization. She came to me for a job. I was desperate and badly in need of employees and subordinates. I have immediately welcomed her without going into without taking any interview. I told her to sit outside and do work from from other subordinates. At the end of the day, she came to me to seek my permission to go home. I have seen that her one eye was swelled, ऐसा सूजा हुआ आँख दिखा मेरे को उसको, और something flesh coming out of that eye. I surprised, मैं बोला कि what has happened Mamta to your eye? She replied, sir, I don't have vision in one, and it is same like from birth. I was little stunned, and मैं सोचा कि भाई अभी whether to retain such girl and what has happened, why I have not seen in the morning when she came. Probably she would be wearing sunglasses, and therefore I could not visualize her eyes time. But in the evening, I could see her eyes swelling and something flesh coming out of that. Therefore, it was giving something, some question mark in my mind, whether to retain this girl in the organization or not. So, but again, मैंने सोचा कि भाई ये तो भगवान ने दी हुई चीज है इसको. But फिर एक ग्रज ऐसा दिमाग आया कि now these people, our subordinates और जो अपने employees रहते हैं, they may have to interact with other people, clients, and represent office to somewhere else. Therefore, it will be very awkward for such, to work with such person, and other colleagues will be that comfortable to work such person. But मैंने सोचा कि but अभी मैंने इसको आज मैं कैसे इसको निकालूं? तो let her be in the office. She is comfortable. She is comfortable in the office. और accordingly. फिर उसके बाद में almost 2 months down the line, I realized one thing,
I used to, since I was very conscious about her, I was concerned her presence in the office. Therefore, I used to watch all the things meticulously, what she is doing, how she is doing, at what time she is coming, at what time she goes, and looking things very meticulously. But one thing I realized once down the line that she was quite अपन जैसा कहते हैं ना कि pure soul, जैसे शुद्ध आत्मा बोलते हैं. So she was hard working, sincere, dedicated, and most committed person. I realized. तो मैं बोला कि she is not a liability to me, now she is asset for me. And things started. One day she has expressed her willingness to do CA. I laughed at her. कि मैं बोला कि ममता तू ले सकेंगी ये चैलेंज, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू सीए. बट again got immersed in my mind कि भाई she is so hard working, she is dedicated, committed to work, and this person she can do anything because she has already done, she has overcome many odds in her life. Rather, she has conquered many difficulties, or she has overcome many odds in her life. Therefore, मैंने सोचा उसके कि भाई हाँ, she can take up the challenge of CA. But then I told her you will have to follow some guru mantras in your life. तो क्या मैंने उसको बोला कि मैं बोला you will have to write down daily, you will write 4-5 pages from English newspaper. It will improve handwriting. Because her handwriting was very poor, her speed was very slow, and she used to have a lot of spelling mistakes. So I told her to write down 4-5 pages every day from any newspaper, English newspaper, so that she can improve her spelling ability as well as she can improve her handwriting and speed. And another thing, what I felt that she did not have physical fitness in the way it is required for CA, the challenges to take challenges for CA. Therefore, I told her you will have to at least have 2-3 kilometers of running every day to improve your body metabolism. And I have taught her how to do hard exercises and all that to improve hand grip. Because if her hand grip will improve, she can write speedily, or she can have improvement in writing. So I told her to do all those exercises. And to my surprise, actually, on the very next day, she has started all these things, and she kept on reporting me every day, on everyday basis. And this kept on going till she has completed a CSA, I think so. I remember one more instance. It was at the end of audit period, and in our office, lot of work remained pending to be completed before due date. And in the way of this situation, for days together, Mamta used to sit late at night, and sometimes till midnight. Used to complete her work, and she used to accompany me for a longer time. And this shows her dedication and remarkable commitment. Once I met her present employer, Shri Manish Sharma. I knew him by name, but I met him here before. Someone introduced me, saying that he is sole, he is of MIT group of institution. Soon I remembered, and I told him that my student Mamta Rao is serving in your institution. He was so pleased and expressed gratitude to me for giving such a nice training to Mamta. And on day I really felt very great, and as if I have in my life it was feeling was that. In recent past, I had an occasion to go to her home, and I found that she is making very nice balance between work and the family. I know at last, I say she is extremely hardworking, sincere, courageous, dedicated, committed to work. And I am quite sure that she will be successful in all walks of her life. She is very capable and responsible person.
आयुष हर ग्लोरियस फ्युचर. ममता, तू अशीच उडत राहा आणि तुला असं उडताना पाहून मला भरभरून आनंद होईल. कारण आपल्यातला जो रिलेशन आहे एक बाप लेकीचा रिलेशन आहे आणि त्याच्यामुळे मला तुला असं पाहताना इतका आनंद होईल. Thank you organizers for giving me this opportunity for sharing thoughts for Mamta. Thank you very much, Vishal bhai, Virag bhai. धन्यवाद. थँक्यू सर. हे सगळं तुमच्यामुळे झालेलं आहे. तुम्ही जे बसलेले आहे ते फक्त तुमच्यामुळे. अगर शेवटी इनफॅक्ट देखिए सर, आखिर she used to give credit to me several times. मैं बोला, but in fact her hard work, her sincerity, dedication, her pure soul actually is responsible for doing all these things. Right now she is managing almost number of units of that institution. Means it is not a small job actually. Managing so many units of that institution, I think that institution might be having 70-80 units, and in itself, in local area it is a very big institution. And Manish Sharma himself is a very good person. Actually, he is known locally everywhere, and उसको लोग admire भी करते हैं. And right now Mamta is the right hand of Manish Sharma. This is really a remarkable thing. I thank you very much for giving me this opportunity. जो भी है यहाँ बदल नहीं सकते, लेकिन मेरे दिल के पास में उसकी सारी जर्नी मेरे दिल हाथ है सर. प्लीज करिए. थैंक यू सो मच. येस ममता जी. किती वर्क दिले तरी पण माझी जी बेसमेंट होती ती फक्त रवी छाजेड आणि रवी छाजेड. थँक्यू सो मच सर. ये जो इनके आपके साथ में एक महारथी बैठे हुए हैं अकुला जी, तो ये अनन्य साधारण व्यक्तिमत्व है. इसने बहुत सी चीजें हमको सिखाई. ही इज IT एक्सपर्ट, अलॉन्ग विद ही इज अ रिमार्केबल पर्सन. और वो ऐसा वैसा नहीं है. स्विमिंग में मैंने उसको देखा है, बट बिकॉज आई यूज्ड गो टू स्विमिंग पूल एंड आई यूज्ड टू बी देयर. ही इज वेरी एक्सपर्ट एंड वेरी केपेबल पर्सन. एकदम मल्टीफैसेटेड पर्सन इज अकुला जी. एंड आई रियली, देखो इनको देख के हमको जिंदगी में बहुत बड़ी इंस्पायरेशन मिलती है, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है. विराग भाई आपका बहुत धन्यवाद. विशाल भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने इतना खूबसूरत ये इनिशिएटिव लिया है जिसकी कोई हद नहीं. और आज ममता के बारे में शेयरिंग करते वक्त मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, एक बाप अपनी बेटी के लिए जैसे शेयरिंग करता है वैसा महसूस हो रहा है मेरे को. सर हम सिर्फ टैलेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं आप सबके सामने, बट एक्चुअल में जो बैक एंड पे जिन्होंने मेहनत की है उनपे वो सर आप जैसे लोग हैं सर. और एक चीज कहना चाहूंगा सर, यही बेसिक डिफरेंस होता है बॉस में और एक मेंटर में. बॉस सिर्फ काम सिखाता है, आपने उनको इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में भी सिखाया, कैसे उनको सीए पे अप्रोच रखने, कैसे क्लियर करना है. जब उन्होंने कहा कि उनको एक जॉब नहीं मिल रहा था इनिशियल स्टेज में, आपने उनको सपोर्ट किया. आपने अकाउंट से लेके इंटरपर्सनल स्किल्स से लेके कैसे क्लियर करना है एग्जाम, कैसे हैंडराइटिंग सुधारना, सब ओवरऑल डेवलपमेंट पे आपने परफॉर्मेंस उनको सिखाया है, उनको डेवलप किया है, उनको ग्रो करने में हेल्प की है सर. दैट इज द मेजर कंट्रीब्यूशन विच हम लोग सर एक मीडियम है सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड sir, thank you for your time. I hope so you are here online with us. Meanwhile हम ममता जी आपसे जानना चाहेंगे आपका चाइल्डहुड कैसा था, मतलब जैसे आपकी स्कूलिंग कैसे गई, आपने कैसे ओवरकम किया, क्या चैलेंजेस थे स्कूलिंग डेज में, अगर आप उसके बारे में कुछ बता पाए. जी हाँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरा बर्थ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था. और मेरे जन्म के बाद फिर मेरे मम्मी पापा को पता चला कि मेरी एक आँख ही नहीं, तो भी उन्होंने मेरे ऊपर जो प्रेम है वो उनका कभी कम नहीं किया. लेकिन जो हमारे रिलेटिव्स थे वो हमेशा जब घर पे आते थे तो पापा को बोलते थे कि इसको नॉर्मल बच्चों के साथ मत रखो, नॉर्मल स्कूल में मत पढ़ाओ, हैंडीकैप बच्चों की स्कूल है स्पेशल, आप वहाँ पे डालो, लोग आपको नाम रखेंगे, उसको नाम रखेंगे, आपको क्वेश्चन पूछेंगे. लेकिन पापा मेरे साथ थे. पापा ने बोला कि नहीं, ये मेरी बच्ची है और मेरे साथ ही रहेगी.
और इसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद प्राइमरी हाई स्कूल में, जो मराठी मीडियम था। वो ग्रेजुएशन तक मेरा सारा एजुकेशन मराठी मीडियम में हुआ है। उसके बाद जब मैं 4th क्लास में थी तो मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, जिसमें मेरे दिमाग में फीवर चला गया। उसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। रात में जो सोई तो सुबह मुझे नींद से जाग ही नहीं आई, और सबने बोल दिया कि ये अभी नहीं रिकवर नहीं हो सकती है, तो आप छोड़ दो, इसको लेके मत जाओ अस्पताल। लेकिन मेरे पापा ने बोला कि नहीं, मेरी बच्ची है, मैं जाऊंगा। सारे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर ने बोल दिया था, हाथ ऊपर कर दिए थे कि कुछ नहीं होगा अभी। लेकिन पापा मुझे लेके गए पूना में रूबी हॉस्पिटल में। वहां पे 1 मंथ तक मैं बेहोश थी। 1 मंथ के बाद सारी ट्रीटमेंट होने के बाद मैं होश में आई, और फिर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। So, ये इससे सब मतलब है कि आपको या बोलिए कंटिन्यू। नहीं सर, बोलिए नहीं। बोल रहा था कि इससे पता चला कि आपकी फैमिली रादर आपके पेरेंट्स काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। तो वो फेज में आपकी स्कूलिंग लाइफ में आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स आए थे, मतलब कुछ बच्चे आपको मे बी परेशान करा, टीचर्स ने कैसे सपोर्ट किया, वैसा उसके बारे में आप कुछ शेयर करेंगे? सपोर्ट तो वैसे ज्यादा सपोर्ट नहीं था किसी और का। सब अभी एक आपकी वजह से अब नॉर्मल दिखते हैं। हम रास्ते से भी जाएंगे तो लोग 2-2 बार मुड़ के देखेंगे कि अरे ये क्या हो गया। मम्मी को सवाल करेंगे, अरे ये कैसे हो गया, आपने सोलर एक्लिप्स में कुछ काम किया था क्या, सूर्य ग्रहण में कुछ किया था क्या, कुछ गिर गए थे क्या, कैसे हुआ। तो इसकी वजह से फिर मम्मी को भी लगता था कि मैं अगर कहीं फंक्शन में इसको लेके जाऊंगी तो लोग मुझे सवाल पूछेंगे। तो अवॉइड करते थे कि मैं कहीं पे जाऊं, सिर्फ मैं अपना स्कूल और घर, बस इतना ही काम था। तो आप ये टाइम जो आपका था, उसमें आपके आपके खुद को, माइंड को कैसे आपने डेवलप किया, या उस जो ये परिस्थिति थी उसको कैसे आपने संभाला? मतलब इतने सालों तक आपको ऐसे लगा कि दिस मतलब डिफिकल्टी हो रही है मुझे या ऐसे, तो आपके माइंड में कभी क्या विचार आ रहे थे? आपने कैसे आपको खुद के आपको मेंटल हेल्थ को कैसे आपने सही किया, सही रख पाया? यस, मेंटल डिप्रेशन तो था, लेकिन मेरी फैमिली का सपोर्ट इतना ज्यादा था, क्योंकि उन्होंने कभी बोला नहीं कि तुझ में ये कमी है, तू ये नहीं कर सकती। क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो भी, हम 4 बहन भाई है, तो चारों को भी एक स्कूल में सबको एक साथ है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ कम है या उनको कुछ ज्यादा है। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा डिप्रेशन नहीं आया कि मैं छोड़ दूं, क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं कर सकती तो मैं अपना एजुकेशन तो अच्छे से कर सकती हूँ। अगर पापा ने मुझे दिया है, ये सिचुएशन दिया है कि आपको बढ़ना है, आपको काम करना है, तो मैं सीखते गई, काम करते गई। अहमदनगर तक में मेरा 6 स्टैंडर्ड तक एजुकेशन हुआ। उसके बाद फिर हम औरंगाबाद में शिफ्ट हुए। औरंगाबाद में MIT स्कूल, जहाँ पे अभी मैं काम कर रही हूँ एज एन इंटरनल ऑडिटर। तो ये ट्रस्ट की स्कूल थी, MIT हाई स्कूल मराठी मीडियम। वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ पे एडमिशन होने के बाद वहाँ के जो टीचर थे वो भी मुझे बहुत इंस्पायर करते थे कि हाँ तुझे करना चाहिए, तुझे बोलना चाहिए। तो ऐसे ही ऐसे राइटिंग की एक कंपटीशन थी जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तो मेरी तो इच्छा नहीं थी कि मैं पार्टिसिपेट करूँ, लेकिन मेरे टीचर ने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं, तुमको पार्टिसिपेट करना है और तुमको ये करना है, आप कर सकती हो। तो मैंने पार्टिसिपेट किया। सारे महाराष्ट्र के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, और फीस थी ओनली 10 रुपीज। तो वो 10 रुपीज भी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए मेरे टीचर ने बोला कि नहीं नहीं, ये 10 रुपीज भी मैं भरूंगी, आपको नहीं भरना है, लेकिन आपको पार्टिसिपेट करना है। तो वो आया वो दिन, मैंने किया, अटेम्प्ट किया। जब उसका रिजल्ट आया तो जो टीचर ने मुझे इंस्पायर किया था वो मेरे क्लास में आई, और सबके सामने उन्होंने बोला कि ममता को मैंने बोला था कि आप पार्टिसिपेट करो, और इसने ये मेरा विश्वास पूरा करके दिखाया। आज उसने 3rd नहीं, 2nd नहीं, 1st रैंक लाया है ऐसे राइटिंग में। और तब सबसे पहली बार स्कूल में बोर्ड पे मेरा नाम लिखा गया, ममता शंकर राव, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। और उससे मैं बहुत इंस्पायर हुई, और उसके बाद मैंने स्टडी को कभी नहीं छोड़ा। जैसे छाजिद सर ने बोला कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी, ये खराब थी इसकी वजह से क्या हुआ कि 10th में मेरे मार्क्स कम आए, 12th में मेरे मार्क्स कम आए, तो इसलिए ना मैं D.Ed को जा सकी ना B.Ed को जा सकी। तो करना क्या है, तो पापा ने बोला कि B.Com में कोई बच्चे जाते नहीं, B.Com कर लो, B.Com अच्छा है। तो मैंने फिर B.Com को एडमिशन ले लिया। और ये सारी जर्नी, घर से कॉलेज 3 किलोमीटर दूर था,
जाने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो पैदल ही जाना था, पैदल ही आना था। लेकिन एजुकेशन नहीं छोड़ना था, क्योंकि वही मेरा बैकबोन था, उसी से मुझे आगे बढ़ना था। तो बीकॉम करते करते समझ में आया कि बच्चियां तो जॉब भी करती है और काम भी करती है, तो मुझे भी सीखना चाहिए, प्लस मुझे काम भी करना चाहिए। तो मैंने जॉब के लिए सर्च किया, लेकिन आपको की वजह से मुझे कहीं पे जॉब नहीं मिला। औरंगाबाद में वीडियोकॉन कंपनी है जहाँ पे वायर असेंबली का काम होता है, तो वहां पे मैं गई थी। तो उन्होंने मुझे देखते ही रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं, हम आपको अपॉइंट नहीं कर सकते, आपको जॉब नहीं दे सकते। ऐसे एक बार नहीं, ऐसे हर बार हुआ। 3-4 जगह पे मैं गई, तो हर जगह पे उन्होंने ऐसे ही जवाब दिया कि वो मुझे नहीं बेयर नहीं कर सकते। तो और ज्यादा डिप्रेस हो गई कि क्या होगा, बीकॉम तो कर रही हूँ, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, करना क्या है। तो ऐसे ही करते करते न्यूज़पेपर में एक ऐड आ गई कि अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो आप ट्रेनिंग यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। औरंगाबाद में MCAD, महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, इनकी वो ऐड थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर जॉब नहीं मिला तो काम तो कर सकती हूँ, बिजनेस खुद का कर सकती हूँ, यहाँ पे तो मुझे कोई रोकेगा नहीं। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे ये अटेंड करना है, और मैंने 1 मंथ की ट्रेनिंग अटेंड कर ली। अटेंड जब कर रही थी तो वहाँ के जो ऑफिसर थे वो मेरे गांव में रहते थे, और वो मुझे हमेशा देखते थे कि रास्ते से मैं आ रही हूँ, और मैं तब चश्मा यूज नहीं करती थी, विदाउट स्पेक्स जो नेचुरल है वो था। तो वो मुझे हमेशा देखते थे। जब ट्रेनिंग खत्म हुई तो ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया कि केक कैसे बनाना है, शैम्पू कैसे बनाना है, सॉस कैसे बनाना है, ये सब रेसिपी वहाँ पे सिखाई गई थी, ताकि हम खुद होके कुछ स्टार्ट कर सके अपना बिजनेस। वो ऑफिसर ने लास्ट ट्रेनिंग का डे था, तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट था फोटोसन का चश्मा, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको हमेशा देखता हूँ, आप पैदल आती है, पैदल जाती है, लेकिन ये गिफ्ट आपके लिए है और आपको इसको हमेशा यूज करना है। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, मतलब ये बोल रहे हैं यानी कुछ अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तो मुझे उनकी बात सुननी चाहिए और मुझे स्पेक्ट यूज करना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कि जैसे होलसेल से स्पाइसेस का मटेरियल लाना है, उसको छोटे छोटे पाउच में पैक करना है और सारे रिटेल शॉप में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सब काम स्टार्ट किया। घर पे पापा की कंपनी का जॉब छूट गया था क्योंकि हाथ फ्रैक्चर हो गया उनका, तो घर पे भी अभी शॉप चालू कर दिया था। तो घर पे शॉप थी, वहां का सामान भी लाते थे, प्लस मेरे लिए भी सामान लाते थे। मैं उसको पैक करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करती थी। स्टार्ट किया अपने छोटे से गांव से, सातारा गांव से, और मैं स्पेक्ट यूज करने लगी। तब भी साइकिल नहीं थी, पैदल मुझे जाना था। तो एक मेरे गांव से जर्नी स्टार्ट की। धीरे 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 मेरा बिजनेस बढ़ते गया। फिर मैंने सोचा कि मुझे और बाजू के गांव में भी जाना चाहिए, तो गांव के नजदीक फिर बाजू के एरिया में मैं जाने लगी। ऐसे करके करके 1 से 2, 2 से 3 एरिया मैंने बढ़ा दिया। लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज्यादा थी और इनकम बहुत कम था। तो भी 1 साल में मैंने इतने पैसे कमा लिए कि मैंने साइकिल ले ली। अभी मेरी जर्नी पैदल थी, अभी मेरी जर्नी साइकिल पे स्टार्ट हो गई। साइकिल लेने के बाद मैंने और 1-2 एरिया में मेरा बिजनेस बढ़ा लिया। ये तो चल रहा था, लेकिन लोग तो हमेशा बोलते थे कि अरे ये लड़की है, इसको क्यों भेजना, लोग अच्छे नहीं है, तो ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर करना क्या चाहिए, अब जॉब तो नहीं मिलेगी, बिजनेस तो करना है, क्या करना क्या है। तो शॉप में एक लड़का आता था जो P2 कर रहा था, और उसने ऐसे ही बोल दिया कि अरे बीकॉम हुआ कर रहे हो आप तो सीए कर लो, सीए करेंगे तो बेनिफिट हो जाएगा, पास नहीं हुए तो भी चलेगा, जॉब तो मिल जाएगी, सीए का नाम लग गया है तो काम तो मिलेगा, ये तो पक्का है। मैंने बोला ठीक है, आप आपकी एक बुक लाके दो, मुझे देखने तो दो कि सीए की बुक कैसी है। तो इनकम टैक्स की बुक्स उसने मुझे लाके दी। बुक्स देख के ही मुझे नींद आ रही थी, समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि सारा एजुकेशन मराठी मीडियम में हुआ था। और उसमें वो सर्च, सीजर, इनकम टैक्स ऑफिसर, ये सारे वर्ड्स देख के और ज्यादा डिप्रेस हो गई कि करना क्या है। लेकिन उसने बोला कि नहीं नहीं आप करो, करना चाहिए। मैंने बोला ठीक है ट्राई करते हैं। तो सीए के लिए एडमिशन ले लिया। एडमिशन तो ले लिया, आता कुछ नहीं था। फिर बोला कि नहीं मुझे क्लास भी ज्वाइन करना है। अभी मेरा बिजनेस भी चालू था, इनकम भी चल रहा था, प्लस अभी मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया सीए का। औरंगाबाद में पांडेज अकेडमी है, तो उनके पास मैंने क्लास स्टार्ट कर दिए। क्लास में कुछ समझता नहीं था, इंग्लिश सारा, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रोसेस अकाउंटिंग, सारा दिमाग के ऊपर से क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, क्लास में जाती थी, घर आती थी,
क्लास में कुछ लड़कियां मिल गई, उन्होंने बोला कि अरे हम तो जॉब भी करते हैं, हम स्टडी भी करते हैं, हम घर का काम भी करते हैं। तो मुझे भी ऐसे लगा कि हाँ, अरे मैंने भी कुछ करना चाहिए, अपना बिजनेस बिजनेस तो है लेकिन सीए के अंडर मुझे भी काम करना चाहिए। मुझे मालूम था कोई सीए मुझे लेगा नहीं, लेकिन तो भी मुझे ट्राई करना था कि चलो देखते हैं। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोला कि ऐसा कोई कोई जगह है कि जहाँ पे मैं काम कर सकती हूँ। तो उसने बोला कि हाँ, एक जगह है जहाँ पे मैं ज्वाइन हुई थी, लेकिन वो सर बहुत मतलब डिसिप्लिनरी उनको चाहिए। लेट मतलब उनको लड़कियों पे भरोसा नहीं है, वो बोलते हैं कि टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ। और मैं बीमार थी तो 8 दिन में गई नहीं ऑफिस में, तो सर मुझे डांटेंगे, मैं तो जाने वाली नहीं हूँ वहाँ पे, अगर आपको जाना है तो आप जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप मुझे उनका एड्रेस दे दो, तो मैं वहाँ पे ट्राई करती हूँ कि वो लेंगे मुझे नहीं लेंगे, देखते हैं। तो उसने मुझे एक दिन ऑफिस दिखा दिया, वो ऑफिस ये गई एक दिन मैं वहाँ पे, सर आए थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे सर, और मेरा चश्मा था फोटो सन का। गई मैं अंदर उनको पूछने के लिए कि सर मुझे काम करना है ऑफिस में। तो सर ने तो पहले वो उसने मुझे बोला ही था कि इनको लड़कियों पे भरोसा नहीं है। अभी सर ने भी मुझे बोल दिया कि नहीं नहीं, मुझे लड़कियों पे भरोसा नहीं है, लड़कियां काम नहीं करती हैं, उनको 7 बजे जल्दी घर पे जाना होता है, और बोलते 7 के बाद रुकेंगे नहीं, मेहमान घर पे आए, आज नहीं आ सकती, ऑडिट के लिए मैं दूर नहीं जा सकती, तो मुझे तो भरोसा नहीं है लड़कियों पे। मैंने उनको बोला कि सर मुझे बस एक चांस दे दो, मुझे काम करना है, मुझे सीखना है, मैं करूंगी। तो उन्होंने बोला कि ऑफिस आवर्स में कितने टाइम तक रुकोगे। मैंने बोला सर आपका ऑफिस टाइम जितना है उतने टाइम तक रुकूंगी, आपने बोला ज्यादा रुकना है तो मैं रुकूंगी, लेकिन मुझे काम करना है। और बात ऐसी हुई कि फोटो सन के चश्मे की वजह से उनको मेरी आंखों के बारे में समझ में नहीं आया कि मेरे आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। उनको लगा कि मैं नॉर्मल गर्ल हूँ, और उन्होंने बोला कि मैं सैलरी तो दूंगा नहीं ज्यादा। तो मैंने बोला ठीक है सर, आप कितनी सैलरी देंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ 1000 पर मंथ आपको दूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। मैंने बोला सर ठीक है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो काम करना है, मुझे सीखना है। और बोले कि 40 किलोमीटर दूर ऑडिट के लिए जाना पड़ेगा, बैंक ऑडिट के लिए, तो आप जाओगे क्या। मैंने बोला यस सर, इतना दूर जाना है तो एक तो आप साथ में रहेंगे, या तो फिर ऑफिस का कोई कलीग होगा जो मेरे साथ रहेगा, तो मैं रेडी हूँ, मैं जा सकती हूँ और मैं कर सकती हूँ। तो बोले कि ठीक है, आ जाओ कल से। तो मैंने अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मुझे सर ने हाँ तो बोला, आगे का देखेंगे जो भी, अभी तो हाँ बोला है। दूसरे दिन गई मैं 11 बजे, टाइम बोला था उन्होंने 11 बजे आने के लिए, सर आए नहीं। 11 से 12 बजे तक 1 घंटा मैं वेट करती रही, ऑफिस नहीं खुला, ऑफिस नहीं खुला, सर आएंगे कि नहीं आएंगे। 12 बजे सर आए, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है तो उनको लगा कि ये लड़की आएगी नहीं। मैं 12 बजे तक रुकी, सर आए। फिर फर्स्ट डे तो मुझे मालूम भी नहीं था कि बैठना कहाँ पे, तो सामने जो गेस्ट के लिए सोफा सेट होता है, मैं वहां पे बैठ गई। तो सर ने बोला नहीं नहीं, आपकी जगह वो नहीं है, आपकी जगह अंदर केबिन में है, कंप्यूटर है वहां पे, आप वहां पे बैठो। और फर्स्ट डे मैंने जो काम किया, बस एक ही काम किया, जेरॉक्स लाने का। उन्होंने मुझे दिन भर एक ही काम दिया, जाओ जेरॉक्स लेके आओ, जेरॉक्स लेके आओ। तो दिन भर मैंने वही काम किया। ऐसे करते करते 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन हो गए। 8 दिन भी मैं 11 बजे जाती थी, सर 12 बजे आते थे। ऐसे करते करते 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद उनको लगा कि नहीं नहीं, ये लड़की को काम करना है, और इसको मैंने ऑफिस की चाबी देनी चाहिए। और ऑफिस में कोई नहीं था क्योंकि मेरा P2 का एडमिशन था, और तब दोनों ग्रुप क्लियर करके आर्टिकलशिप स्टार्ट होने वाली थी। तो तब सारे इतने कुछ आर्टिकल्स नहीं मिल रहे थे, तो ऑफिस में कोई नहीं था उनके, मैं अकेली थी। तो 15 दिन के बाद उनको लगा कि हाँ, इसको काम करना है, तो उन्होंने मुझे ऑफिस की चाबी दे दी। उन्होंने मुझे बोला कि आप हर रोज 11 बजे आओ, ऑफिस खोल दो और अपना अपना काम स्टार्ट करो। तो काम मैंने सोचा कि ठीक है। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने के बाद एक दिन क्लाइंट बैठे थे सामने, और उन्होंने मुझे बुलाया बुलाया कि स्टेशनरी लानी है कुछ तो ला के दो। और मेरे पास साइकिल थी, क्योंकि मैंने साइकिल दी थी, सारे काम मैं साइकिल पे करती थी, उनको ना कोई खर्चा था ना कुछ था। तो उन्होंने बोला कि स्टेशनरी ला के दो। मैंने बोला ओके सर। लेकिन तब क्या हुआ कि मेरी चश्मा जो था वो वाइट हो गया पूरा, और उनको समझ में आया कि मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। तो तुरंत उन्होंने क्लाइंट के सामने मुझे पूछा कि तेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला हाँ सर, प्रॉब्लम तो है। तो क्लाइंट के सामने कुछ बोले नहीं, तो जाओ बोले स्टेशनरी लेके। तो मैं गई, स्टेशनरी लेके आई, क्लाइंट चले गए थे। उनके बाद फिर उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ, आपकी आंखों को क्या हुआ। तो मैंने बोला कि सर ये बाय बर्थ है, और सारे डॉक्टर को दिखा दिया, पापा ने सारे डॉक्टर को दिखा दिया था,
सबने बोल दिया कि ये नेचुरल है और कुछ नहीं कर सकते। एक आँख को करते समय दूसरे आँख को कुछ हो गया तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो सारे डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए थे कि कुछ नहीं कर सकते। तो सर एकदम शांत हो गए। ये अभी मतलब उनके मन में क्या चल रहा है ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने अभी बातें करना थोड़ा सा कम कर दिया था। तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि मैंने शायद उनको धोखा दिया। ये मुझे भी मालूम नहीं था कि उनको ये चीज मालूम नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि उनको पता चल गया, लेकिन उनको मालूम नहीं था। तो मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने उनको धोखा दिया है, और मेरी वजह से अगर उनके क्लाइंट कम हो गए, अगर कुछ उनके ऊपर इफेक्ट हुआ, तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। तो मुझे खुद को क्विट करना चाहिए, ऑफिस का काम मुझे छोड़ देना चाहिए। तब तक मेरा अटेम्प्ट आ गया था सीए का, पहला अटेम्प्ट। स्टडी तो वैसे कुछ आती नहीं थी, इंग्लिश भी नहीं समझता था, लेकिन आया था अटेम्प्ट। तो मुझे एग्जाम फॉर्म भरना था। तो 1-1.5 महीना पहले मैंने उनको बोला कि सर अभी मुझे छुट्टी चाहिए एग्जाम के लिए, मुझे एग्जाम फॉर्म भरना है। तो सर ने बोला कि ठीक है। उन्होंने भी ज्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था अभी उनके मन में क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरी सोच थी कि उनको बुरा लग रहा है कि मैंने उनसे कुछ छुपाया। तो मैंने बोला सर ठीक है, मैं छुट्टी पे जा रही हूँ, और तय कर लिया। तब बहुत रोना भी आया कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, अभी मैं क्या करूंगी। तो अभी मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, अगर उन्होंने खुद होके बुलाया तो ही मैं जाऊंगी, अदरवाइज मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं करूंगी। तो एग्जाम फॉर्म कर दिया, स्टडी की, और फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने, एग्जाम मेरे चल रहे थे। लास्ट पेपर था मेरा आईटी का, और 12 बजे का टाइम था, और घर में लोकल पीसीओ था, दुकान में लगाया था। 1 रुपया डाल के आप बातें कर सकते थे उस पर। फोन की बेल बजी, एग्जाम को जाना था उसके पहले फोन की बेल बजी। फोन उठाया तो फोन था रवि झाजिर सर। तो बहुत 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 ही ज्यादा खुश हो गई मैं कि सर का मुझे कॉल आया है कि अभी मैं काम कर सकती थी। उन्होंने मुझे सबसे पहला सवाल किया कि तेरे पेपर खत्म हुए या नहीं हुए। मैंने बोला सर अभी आज लास्ट पेपर है मेरा। तो सर ने बोला कि ठीक है, आज का पेपर दे दो, कल से ऑफिस में आ जाना, ऑडिट का काम पेंडिंग है, आपको काम करना है। और उस दिन मैं इतनी खुश हुई कि मुझे ऐसे लगा कि मुझे अभी पर मिल गए और मैं काम कर सकती हूँ। किसी को मेरे काम की जरूरत है और मैं वो कर सकती हूँ। तो बहुत खुश हो गई। मैंने घर वालों को भी नहीं बताया था कि ऐसे कुछ हुआ है मेरे ऑफिस में, सर ने मुझे ऐसे बोला है, कुछ भी नहीं बोला था। सिर्फ वेट कर रही थी, वो कॉल आया मुझे, और मैंने अभी डिसाइड कर लिया कि हाँ सर जो बोलेंगे वो काम मैं करूंगी, जो भी हो करूंगी, लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। सीए की डिग्री मिले ना मिले, लेकिन काम नहीं छोड़ूंगी। दूसरे दिन मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। फिर क्लाइंट के पास जाना, क्लाइंट के यहाँ जाना था, वो भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर था। तो उन्होंने बोला कि ऑडिट के लिए जाना है। मैंने बोला यस सर मैं जाऊंगी। फिर उनका टेलीफोन का बिल भरना हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना हो, सेल्स टैक्स ऑफिस में जाना हो, टीडीएस रिटर्न भरना हो, जो भी है सब पहले मैनुअल प्रोसेस थी, और सबके लिए बाहर जाना पड़ता था। तो सबके लिए मैं रेडी थी और सब काम मैं करती थी। क्लाइंट आया तो क्लाइंट को चाय देने का काम भी मैं करती थी, बाहर टपरी से चाय लाके मैं क्लाइंट को देती थी। लेकिन मैंने अभी तय किया था कि नहीं, मुझे काम करना है, मुझे कंटिन्यू करना है, मैं क्विट नहीं करूंगी। ऐसे करते करते फिर मैं काम सीखते गई, और सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है। बीकॉम में मैं पढ़ती थी, लेकिन वो प्रैक्टिकली कैसे करना है ये मुझे मालूम नहीं था। वो मुझे उन्होंने सिखाया डेप्रिसिएशन। एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके दो, कुछ नहीं करना है, एक्चुअल डेटा है उसमें 10% अमाउंट बढ़ानी है और आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करना है। तो मैंने बोला ठीक है, कर दिया मैंने। 10% प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आए, मैंने बढ़ा दिया 10%। तो सर ने फिर चेक किया, और चेक करने के बाद बोला कि अरे ऐसे नहीं है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अलग चीज है। एक काम करो, कल आप पढ़ के आओ कि ये क्या है, और फिर मुझे बताना कि ये आपने सही किया कि गलत किया। तो मैंने बोला सर ठीक है चलेगा। वो सिलेबस में था ही प्रिलिमिनरी, मैंने वो पढ़ के आई दूसरे दिन, और मुझे हंसी आने लगी कि मैंने क्या किया। फिर मैंने सर को बोला कि हाँ सर मैंने अभी सेक्शन 35 पढ़ लिया, अभी मुझे समझ में आया कि ये 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको एबॉलिश करना है या कम करना है। तो ऐसे करते 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 उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। एक दिन क्लाइंट यहाँ पे गई ऑडिट के लिए, ऑडिट किया, वाउचर चेकिंग किया, रिसिप्ट किया, पेमेंट किया, सब किया, लेकिन ओपनिंग बैलेंस चेक नहीं किया। आई बाद में सर को बैलेंस शीट बनाना था, तो सर ने बोला कि क्या किया तुमने, समझ में आता नहीं क्या, ऑडिट ऐसे कैसे ऑडिट किया, ओपनिंग बैलेंस कौन चेक करेगा। तो तब मुझे समझ में आया कि अरे हाँ ये ओपनिंग बैलेंस भी होता है कुछ बैलेंस शीट का, इसको भी चेक करना पड़ता है। तो ऐसे करते 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 मेरा नॉलेज बढ़ गया ऑफिस के काम में।
और सर को विश्वास होने लगा कि हाँ अरे ये लड़कियां काम कर सकती हैं, अभी मुझे लड़कियों पे भरोसा है, लड़कियां काम कर सकती हैं। उसके बाद तुरंत सीपीटी आया। सीपीटी की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी बच्चियां क्लियर हो गई सीपीटी में और उनको आर्टिकलशिप की जरूरत थी। हमारे ऑफिस में जब आई तो पहले एक भी लड़की नहीं थी, मैं अकेली लड़की थी और मेरे साथ एक लड़का था, हम दोनों ऑडिट पे जाते थे। अभी जब लड़कियां आई तो सर ने उनको ज्वाइन कर लिया क्योंकि अभी उनको लड़कियों पे भरोसा आ गया था। अभी सर क्लाइंट को बोलते थे कि नहीं नहीं लड़कियां कुछ कम नहीं है और लड़कियां काम कर सकती है। तब मेरे ऑफिस में हम 6 लड़कियां थी, ओनली, एक भी लड़का नहीं था। 6 लड़कियों के साथ हमारा ऑफिस चलता था और हमारे बॉस बहुत खुश थे। ऐसा करते करते एक दिन क्या हुआ कि लोग तो बोलते ही थे कि अरे आपको में प्रॉब्लम है, कहीं पे बताओ, इसको बताओ, उसको बताओ। मैं भी पापा को जाके बोलती थी अरे लोग ऐसे बोलते क्या करना। तो पापा बोलते थे कि नहीं नहीं मैंने तो हर जगह पे दिखा दिया, सबने बोल दिया कि कुछ नहीं हो सकता। तो एक बार अपनी फ्रेंड थी, मेरी फ्रेंड थी, तो वो बीमार थी, उसके साथ मैं चली गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उसको दिया छोड़ के और मुझे ही बोला कि तेरी आंखों में ये प्रॉब्लम है। अमेरिका से हर साल शरद दीक्षित बोल के एक डॉक्टर है जो लायंस क्लब में आते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, तो आप एक बार वहां पे जाओ और आपकी आंखों को बताओ। अभी मैंने बोल दिया पापा को कि ऐसा ऐसा है, हम चलेंगे उधर। तो पापा ने बोला कि नहीं नहीं हमने तो बता दिया नहीं जाना है उधर, अभी सब डॉक्टर ने बोल दिया ना कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला आपने जब दिखाया तब मैं छोटी थी, मुझे नहीं मालूम था कि आपने कहाँ पे दिखाया मुझे, लेकिन आज मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ चलो एक बार। अगर उन्होंने बोला नहीं तो इसके बाद मैं कभी बोलूंगी नहीं आपको कि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ, लेकिन आज मेरी इच्छा की खातिर आप चलो मेरे साथ। तो पापा ने भी कंपनी को छुट्टी ले ली मेरे लिए। सुबह 10 बजे हम वहां पे पहुंचे, बैठने के लिए जगह नहीं थी, बहुत सारे लोग आए थे, धूप थी दिन भर। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक हम वहां पे बैठे। 5 बजे जब मेरा नंबर आया, सामने गई तो डॉक्टर ने एक ही बात बोली कि नहीं नहीं ये स्पेशल केस है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये नेचुरल है, आप स्पेशल डॉक्टर को बता। तो और ज्यादा डिप्रेस हो गई और अभी तय कर लिया कि नहीं नहीं अभी मैं बोलूंगी नहीं, किसी को बोलूंगी नहीं कि मुझे लेके जाओ। बाहर लोग मुझे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं घर जाके नहीं बोलूंगी कि हाँ मुझे यहाँ पे जाना है, ये डॉक्टर के पास जाना है, मैंने छोड़ दिया। ऐसा करते करते दिन चले गए, अटेम्प्ट देती रही थी, लेकिन पास नहीं हो रही थी क्योंकि प्रॉब्लम था कि मुझे इंग्लिश ज्यादा समझ में नहीं आती थी। लॉ का सब्जेक्ट लिया, ऑक्शन सेल क्या है ये भी समझ में नहीं आता था, ये बीड क्या है, ऑक्शन सेल क्या है, अभी करना क्या, स्टडी तो करनी है। तो बीकॉम हो गया था मेरा। बीकॉम के बाद एमकॉम ज्वाइन किया, ओनली दिस पर्पस कि मुझे लाइब्रेरी में बैठा मिलेगा और लाइब्रेरी की जो मराठी बुक है वो मैं पढ़ूंगी और दोनों को लिंक करूंगी कि अरे ये मराठी में क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, फिर मुझे समझ में आएगा कि ये क्या है। इसलिए मैंने एमकॉम ज्वाइन किया। पास तो नहीं करना था, एग्जाम नहीं देनी थी मुझे, तो लाइब्रेरी ज्वाइन की। फिर मैंने लॉ की बुक ली, तब मुझे पता चला कि ऑक्शन का मीनिंग क्या है। ऑक्शन का मीनिंग था कि बोली लगाना है, बोली लगाना है और वो बोली लगा के सेल करना है। ऐसे कर करके मैंने अपनी स्टडी को बढ़ाया और मेरी इंग्लिश थोड़ी सी डेवलप होने लगी, समझ में आने लगा पढ़ते समय। और सर ने बोला था न्यूज़पेपर पढ़ो, ये बुक पढ़ो, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। लेकिन पास नहीं हो रही थी, बहुत ट्राई किया लेकिन पास नहीं हो रही थी क्योंकि एक ही डेडिकेशन था कि काम करना है। तो सीपीटी क्लियर होके एक जो लड़की मेरे साथ आई थी तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। हम दोनों ने अटेम्प्ट दे दिया, उसका क्लियर हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो और ज्यादा बुरा लगा कि मैं तो इतने दिन से काम कर रही हूँ, सर बोलते हैं कि हाँ तेरा काम अच्छा है, तू कर रही है, फिर पास क्यों नहीं हो रही है, तो कुछ कमी है, तुझे और ज्यादा डेवलप करना चाहिए। फिर मेरे बड़े भैया की शादी हुई थी 2004 में। तो मेरी भाभी ने एक ऐड देखी टीवी पे कि गणपति नेत्रालय जो औरंगाबाद जालना में है वहाँ पे आई की ट्रीटमेंट की जाती है। तो उन्होंने बोला मेरे पापा को कि आप इनको लेके जाओ, जालना में एक बार लेके जाओ। और मैंने तो डिसाइड किया था तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं, तो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन भाभी ने बोल दिया कि नहीं आप इनको लेके जाओ। तो पापा बोले ठीक है आप इतना ये कर रहे हो तो हमें लेके जाता। गए हम जालना में, डॉक्टर के पास जब हम गए, उन्होंने मुझे जब देखा तो सबसे पहला वर्ड उनके मुंह से जो निकला वो था कि मैं ये काम कर सकता हूँ। इसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा, इसकी गारंटी नहीं दूंगा कि आप ये आंख से देख सकते हैं या आंखें की ऐसे पलके झपक सकती है, लेकिन जो दिख रहा है जितना अभी जो
बैड दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आपको आंख है या नहीं है, इतना मैं कर सकता हूँ। उन्होंने ये बोलने के बाद, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि एक आंख को कुछ सर्जरी करते समय दूसरे आंख की रोशनी कम होने की चांसेस है, तो आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। तो मैंने बोला ठीक है सर, आप क्या करो कि ऑपरेशन की डेट मुझे 1 महीने बाद की दे, तब तक क्या करती हूँ कि सोचती हूँ कि क्या करना है, मुझे करना है कि नहीं करना है, सबकी राय लूंगी और तब देखूंगी करना है कि नहीं करना है। तो उन्होंने मुझे फिर ये बात थी जुलाई 2008, तो मैंने डेट ले ली उनसे 1 महीना बाद की। घर आई, मम्मी को पूछा क्या करना है, मम्मी ने बोला कि नेचुरल है, जैसे वैसे रहने दो, अगर कुछ हो गया दूसरे आँख की रोशनी भी चली गई तो करेंगे क्या, तो पूरी लाइफ है सामने, तो देखो। तो मैंने बोला ठीक है सर। मैंने मेरे बॉस को भी पूछा सर ऐसा ऐसा है, मैं क्या करूँ, तो सर ने बोला कि देख तेरा डिसीजन है, क्या करना है तू कर, लेकिन जो नेचुरल है उसको रहने दे, अभी तो कर रही है तो जो है वो रहने दे। लेकिन मेरा कहना था कि नहीं, जब तक मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो वो डॉक्टर को भी नहीं समझ में आएगा कि ये सक्सेस हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जब मैं उनको बोलूंगी कि आप करो, तो ही उनको ये पता चलेगा कि हाँ ये सर्जरी सक्सेसफुल हो सकती है। तो और पापा तो हमेशा मेरे साथ में थे, वो कभी भी पीछे नहीं हटे। मैंने उनको बोला कि पापा मैं क्या करूं, पापा ने बोला कि तेरा डिसीजन है, तुझे क्या करना है तू सोच, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो तुझे फेस करना है, अच्छा हुआ तो भी तुझे फेस करना है, तो तू डिसाइड कर, अगर तू रेडी है तो मैं भी रेडी हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, तो मुझे करना है, मुझे ये ऑपरेशन सर्जरी करवानी है। तो जब सर्जरी का दिन था, सुबह 10 बजे मुझे बुलाया था हॉस्पिटल में, और 10 बजे मैं ऑफिस चली गई। ऑफिस में सर ने मुझे कैश डिपॉजिट करने के लिए बैंक में भेजा, और तब ऐसा था कि टोकन लेना है कैश डिपॉजिट के लिए और नंबर लगाना है। तो गई मैं बैंक में इतनी ज्यादा रश थी कि मेरा नंबर 3 बजे तक आया ही नहीं, और मुझे 10 बजे हॉस्पिटल पहुंचना था। अभी 3 बजे तक मैं औरंगाबाद में थी, और वो भी मैं बैंक में कैश डिपॉजिट के लिए बैठी थी। अभी क्या करना चाहिए, जाना तो है, डिसाइड तो किया है, कैश डिपॉजिट नहीं की, भागते भागते ऑफिस में चली गई। सर को बोल दिया सर अर्जेंट है, मुझे जाना है, तो आप क्या करो कोई और लड़की को वहां पे बिठा दो और मैं जाती हूँ। सर ने बोला कि अभी ऐसे मत करो, देखते हैं हम कोई डॉक्टर की राय लेते हैं, देखेंगे क्या करना है, इतनी जल्दी मत करो। मैंने बोला नहीं नहीं, जाना तो आज ही मुझे। तो दूसरी मेरे कलीग को ले लिया, उसको बैंक में छोड़ा कैश डिपॉजिट के लिए, और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि सिटी स्कैन का रिपोर्ट भी लेके आना है साथ में। तो वो मैंने निकाल के रखा था, रिपोर्ट लाना था, वो रिपोर्ट भी लेके आई मैं हॉस्पिटल से, और घर पे पहुंची। जब मैं घर पे पहुंची तो मुझे बज गए थे 5 शाम के। तो पापा को बोला मैंने चलो हमें जाना है। पापा ने बोला सुबह 10 बजे बुलाया था, अभी 5 बज गए, तो जाके क्या फायदा, तो उससे अच्छा है कि हम फोन पे बात करेंगे, उनको बोलेंगे आना है कि नहीं आना है। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, जाना तो आज ही जाना है, नहीं तो फिर नहीं जाए। तो फिर गाड़ी, भैया की गाड़ी थी 4 व्हीलर, भैया आया काम से, गाड़ी निकाली। जब हम निकले तो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। तो निगेटिव थिंग सामने आ रही थी कि करना है कि नहीं करना है, सब बोल रहे थे ये ऐसे हो रहा है तो मत जाओ मत करो, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने एक ही बोला कि नहीं मुझे जाना है। निकले हम वहां से, थोड़े एमआईटी कॉलेज के थोड़ा सा 1 मीटर दूर आए, समझ में आया कि सिटी स्कैन का रिपोर्ट जो मैंने लाया था वो घर पे ही रह गया। तो फिर भैया को फोन किया, उसको बोला कि रिपोर्ट लाके दो। दूसरे भैया ने आके मुझे रिपोर्ट दे दिया। मेरा भैया, मेरे पापा और मैं, हम तीनों ही थे साथ में। हम जब पहुंचे हॉस्पिटल में जालना में, तब बज गए थे रात के 8 बजे हम हॉस्पिटल में पहुंचे। सब डॉक्टर घर पे चले गए थे, ओनली वहां पे नर्स थी। उनको बताया कि आज उन्होंने मुझे बुलाया था, कल मेरी सर्जरी है। उन्होंने बोला कि आपको 10 बजे एडमिट होने के लिए बोला था, आप शाम को 8 बजे यहाँ पे आ रहे हो, तो कैसे एडमिट कर सकते हैं आपको। तो मैंने बोला कि आपको नहीं कर सकते एडमिट। मैंने बोला नहीं नहीं सर, आप एक काम करो, जो डॉक्टर ने बोला था कि सर्जरी करने वाले हैं, डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रजत माहेश्वरी। तो मैंने बोला उनको एक बार कॉल लगा के देखो, उन्होंने अगर बोला कि एडमिट कर लो
तो एडमिट हो जाएंगे। अगर उन्होंने बोला कि नहीं करना है तो नहीं आऊंगी मैं, तो हम वापस चले जाएंगे। तो नर्स ने कॉल लगाया डॉक्टर को, डॉक्टर ने बोल दिया कि एडमिट कर लो पेशेंट को। फिर एडमिट हो गई। दूसरे दिन 3 आवर्स तक सर्जरी चली आंखों की। 3 आवर्स के बाद जब मैं होश में आई तो ऐसे तकलीफ हो रही थी आंखों को। शायद आपने मेरी फोटो देखी होगी कि आंख पूरी बंद थी और अंदर का जो था हिस्सा आपको बाहर दिख रहा था, रेड रेड कलर का, जगह नहीं थी आंखों में, वो जगह उन्होंने बना दी थी। और मेरी आंख ऐसे ऊपर नीचे होने लगी थी। तो समझ में आ रहा था कि हाँ मूवमेंट हो रही है, लेकिन आंख बंद थी क्योंकि उन्होंने उसको बैंडेज लगा दिया था। तो मन में खुशी हो रही थी कि हाँ हुआ, सक्सेस हुआ, क्योंकि मैं दूसरी आंख से भी देख सकती थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। उन्होंने चेक भी किया बाद में कि मेरी विजन कुछ कम नहीं हुई दूसरी आंखों की। और ऐसे कहा, उन्होंने बोला कि अभी 1 मंथ तक आपको रेस्ट करना है घर जाके। उसके बाद फिर जो शेल की आई होती है जिसको आर्टिफिशियल आई बोलते हैं, तो वो हम 1 महीने के बाद बिठाएंगे, तब तक आपको रेस्ट करना है घर पे। घर चली गई, ऑफिस जाना नहीं था, तो घर बैठ के करना क्या। और सर ने बोला था कि हैंडराइटिंग तो बहुत खराब है आपकी, जब तक हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं होगी तब तक आप सीए बनेंगे नहीं, ऐसे बोल दिया था। आप हैंडराइटिंग इंप्रूव करो तो ही सिर्फ सीए हो जाओगी, अदरवाइज नॉट। तो अभी सामने था एक टारगेट, अभी इतना बड़ा टारगेट अचीव हो गया था कि मेरी आंख अच्छी हो गई थी दिखने में, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, प्रैक्टिस करने लगी लिखने की। 1 मंथ तक पेपर दिखा, पेन दिखा कि मैं लिखना स्टार्ट करती थी। लिखते 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 एक दिन ऐसा दिन आया कि मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी हो गई कि मुझे खुद पे भरोसा नहीं आया कि ये मेरी हैंडराइटिंग है। और सबको दिखाया मैंने, मम्मी को, पापा को, देखो मेरी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी हो गई। और दूसरे दिन जब लिखा तो फिर से गंदी हो गई। तो लेकिन वो इंटीमेशन था मेरे लिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो मैं ट्राई करते गई करते गई करते गई। 1 मंथ के बाद मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी इम्प्रूव हो गई। उसके बाद मैंने ओपी ज्वाइन किया। ओपी ज्वाइन करने के बाद रिजल्ट आया जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। मेरी फ्रेंड पास हो गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में और मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, मैं फेल हो गई थी। तो अभी क्या, फेल हो गए, अभी क्या करेंगे, लेकिन सीए तो करना है, छोड़ना तो नहीं है, काम भी करना है, सीए भी करना है। तो अभी रोई घर जाके। तो पापा ने बोला क्या करना है तू डिसाइड कर। मैंने बोला इतने सारे अटेम्प्ट दे दिए, एग्जाम फीस भर रहे हम, उससे अच्छा है कि तू एक कंपनी ज्वाइन कर ले, तुझे अच्छी सी पगार मिलेगी और ये सीए छोड़ दे, हर बार कौन खर्चा करेगा एग्जाम का, तो तू कोई कंपनी ज्वाइन कर ले। तो मैंने बोला कि नहीं पापा मैं क्या करूँ। पापा ने बोला तू डिसाइड कर तुझे क्या करना है। मैंने बोला नहीं नहीं मुझे तो सीए करना है और यहाँ की क्लासेस मुझे समझ में नहीं आते, मुझे पूना जाना है। तो अगर पूना जाने देंगे आप तो मैं सीए करूंगी, अगर नहीं जाने देंगे तो नहीं करूंगी, लेकिन मुझे एक चांस दो और मुझे देखने दो कि हाँ मैं खुद को इम्प्रूव कर सकती हूँ या नहीं, प्रूव कर सकती हूँ या नहीं, तो मुझे पूना जाना है। तो पापा ने बोला ठीक है। और जुलाई में ऑपरेशन हुआ, 1 मंथ रेस्ट, अगस्त महीना आ गया था और अगस्त के बाद अपना अटेम्प्ट होता है नवंबर में, सितंबर अक्टूबर 2 मंथ बचे थे एग्जाम के लिए। हम चले गए पूना में, क्लास ज्वाइन कर लिए, एएस फाउंडेशन, बीके अग्रवाल एंड सुबोध शाह, इनके वो क्लासेस थे, वो मैंने ज्वाइन किए। और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गई थी, हैंडराइटिंग इंप्रूव हो रही थी। और हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के लिए क्या करती थी, क्लास में जो लिखा वो घर आके फिर से लिखती थी, होमवर्क करती थी प्लस क्लास वर्क जो किया वो भी डबल करती थी। और सुबोध शाह जो पोस्ट अकाउंटिंग पढ़ाते थे, उनकी टीचिंग स्किल इतनी ज्यादा अच्छी थी कि मुझे जो प्रोसेस अकाउंटिंग नहीं समझ में आ रहा था आज वो पूरा समझ में आ रहा था सब। और सारे हमारे क्लास में 300 प्लस बच्चे थे, वो पूरे बच्चों में सिर्फ मैं अकेली थी कि जो वहां पे बात करती थी। और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था, समझ में लगा था, इंग्लिश समझ में आ रही थी, हैंडराइटिंग इंप्रूव हो रही थी। ऐसे करते करते 2 महीने तक क्लास किए और पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ था, जो जो हुआ वो मैंने किया, वापस आई और नवंबर में मैंने अटेम्प्ट दे दिया। नवंबर 2008 में अटेम्प्ट दे दिया जो मेरा 4th अटेम्प्ट था। अटेम्प्ट दिया, उसके बाद फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ऑफिस के बाद तो सर नाराज हो गए थे मुझसे कि मैंने छुट्टी ले ली और मैंने बोला था कि मत जाओ पूना में क्योंकि आप कर सकते हैं स्टडी यहाँ पे या यहीं पे करो।
नाराज हो गए थे, अभी सर मुझे वापस ऑफिस में लेंगे नहीं लेंगे मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने क्या किया, लेटर लिखा उनको, इंग्लिश में एक लेटर लिखा कि सर आज तक आपने मुझे बहुत सिखाया और आज मैं कुछ सीख के आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नॉलेज बढ़ गया। तो आज तक आपने मुझे सिखाया, अभी आज मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं अपने ऑफिस के लिए स्पेयर करना चाहती हूँ, तो आप मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे क्या? तो ऐसा मैंने लेटर लिखा, कुछ बोला नहीं, ऑफिस चली गई। ऑफिस में सारी लड़कियां थी, 6 लड़कियां थी, मैं चली गई। सर उस दिन भी थोड़ा सा लेट आए, तो मेरे जाने का सर गुस्सा थे, इसलिए किसी फ्रेंड ने मुझसे बात नहीं की क्योंकि सर क्या बोलेंगे। मैं चुपचाप बैठी रही, सर आए 12 बजे। आने के बाद गई अंदर, तो कुछ बोला नहीं, सर के पास लेटर दे दिया। सर ने लेटर निकाला, लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ने के बाद रख दिया नीचे, और पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा कि ये लेटर किसने लिखा। तो उनको भरोसा नहीं आ रहा था कि ये हैंडराइटिंग मेरी है। मैंने उनको बोला कि सर ये मैंने ही लिखा है और ये मेरी हैंडराइटिंग है। तो सर को खुशी हो रही थी, तो सर ने मुझे बोला कि ये ऑफिस तेरा है और इसके दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे, तू कभी भी ऑफिस में आ सकती है। तो मैंने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अभी P2 का सिर्फ एक ही ग्रुप क्लियर हुआ था मेरा, सेकंड ग्रुप बाकी था, आर्टिकलशिप उसके बाद होने वाली थी। तब तक तो मेरा 3 साल का काम हो गया था ऑफिस में, हो गया था। फिर अभी तो आ गया कॉन्फिडेंस, रिजल्ट आया। रिजल्ट जब आया तो मेरा स्कोर आया फर्स्ट ग्रुप में 188 आउट ऑफ 200 एंड 81 मार्क्स इन अकाउंट्स। और बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हाँ मैंने खुद को प्रूव किया, मैं कर सकती हूँ। आया नेक्स्ट अटेम्प्ट आया, नेक्स्ट अटेम्प्ट की भी मैंने प्रिपरेशन कर ली। जब नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया और उसका जब रिजल्ट आया, अब जो मेरी फ्रेंड थी कि जिसका एक ग्रुप पहले निकल गया था, एक बाकी था, जब मेरा फर्स्ट ग्रुप निकल गया तब उसका पीछे रह गया था। अभी बाद में जब अटेम्प्ट दिया कि जो मेरा 5th वाला अटेम्प्ट था, तो रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद पता चला कि मैं पास हो गई बहुत ही ऑफिस में। यस, जो मेरी फ्रेंड थी वो भी पास हो गई और मैं भी पास हो गई। ऑफिस में गई और ऑफिस में जाते समय पेड़े लेके गई थी मैं अपने बॉस के लिए। और सर आए, सर को मालूम था कि आज रिजल्ट है, और उनकी एक आदत थी कि ऑफिस में आए कि सबसे पहले जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ते थे, उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट करते थे। आए सर और गए दर्शन लेने के लिए भगवान का। तब तक मेरी फ्रेंड चली गई सर के पास, उनके पैर छूने के लिए कि हाँ सर मेरा रिजल्ट आया, मैं पास हो गई। तो उनका ध्यान उसकी तरफ नहीं था, उनका ध्यान था मेरी तरफ। मैं तो केबिन में बैठी थी और मुझे उन्होंने पूछा, ममता तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? तो मैंने बोला सर, तो मैंने पेड़े का डिब्बा दिखा दिया उनको कि सर मैं पास हो गई। और जितनी खुशी मुझे नहीं हुई उससे ज्यादा खुशी मेरे बॉस को हुई, बहुत ज्यादा खुश हुए। और उन्होंने बोला कि चलो अभी तो पेड़े मंगवा लो और सारी अपार्टमेंट में पेड़े बांट दो। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सब होने के बाद फिर मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट होने वाली थी। फिर तो भी मैंने सर को पूछा, अभी मुझे मालूम था कि 3 साल मैंने काम किया है, ये ऑफिस मेरे लिए है और मुझे यहीं पे काम करना है। तो भी उनको मैंने बोल दिया कि सर इज देयर एनी वैकेंसी फॉर आर्टिकलशिप फॉर मी? सर बहुत हंसे और सर ने बोला कि ये क्या सवाल है, ये ऑफिस तेरा ही है और तुझे तो काम करना ही है। और मेरा काम स्टार्ट हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गई, काम बढ़ते 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 बहुत अच्छा हो गया। उसके साथ मैंने फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने और एक काम ले लिया। तो वहाँ पे भी हैंडराइटिंग का बहुत इशू था, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए वो बोलते थे कि चेक मत लिखो। एक बार उन्होंने बोला कि आप चेक लिखो, मैंने लिखा, नाम था नीता एंटरप्राइजेस। उन्होंने जब पढ़ा तो मुझे बोला कि ये नीता लिखा है गीता लिखा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं वापस आई पूना से और मैंने मेरा काम स्टार्ट किया, तो वैसे उनके पास बहुत काम चल रहा था, बॉस के पास जहाँ पे अकाउंटिंग का काम कर रही थी। तो उन्होंने बोल दिया कि ये चेक लिख दो। उनको वो पार्टी को चेक ही नहीं देना था, लेकिन मुझे बोला कि ये चेक लिख दो, क्योंकि मैंने चेक लिखा तो वो बाउंस होने वाला था, उनको मालूम है हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है। उन्होंने बोला कि चेक लिख दो, तो मैंने चेक लिख के दिया। तो उन्होंने चेक को 10 मिनट तक देखते रहे चेक को, और मुझे बोले कि तेरी हैंडराइटिंग अच्छी हो गई कि तेरा पेन अच्छा है। तो मैंने कुछ बोला नहीं, और ठीक है, उनको लगा कि गलती से हुआ है इससे,
थोड़ा सा अच्छा आ गया। एक दूसरी पार्टी आ गई तो उन्होंने बोला कि और एक चेक बना दो, तो मैंने और एक चेक बना दिया। हैंडराइटिंग तो अच्छी दिख रही, सर ने फिर से देखा चेक को। अभी सर ने बोल दिया, अरे तेरे हैंडराइटिंग तो बहुत टकाटक हो गई, ये कैसे हुआ? तो फिर मुझे लगा कि हाँ अरे चलो इम्प्रूवमेंट हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो वो जो सर थे उनका नाम भी मैं रेफर करना चाहूंगी यहाँ पे। औरंगाबाद में है शीतल फर्निशिंग, जो कर्टन और फर्निशिंग की शॉप है, होलसेल शॉप। तो वहाँ पे मैं अकाउंटिंग का काम करती थी। और ये जो थे जो मेरे बॉस, उनका नाम था इंदरचंद संचिती। तो इनको भी मतलब पता चल गया था हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, इसका काम अच्छा है। लेकिन काम करते करते अभी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरा काम बढ़ गया। चेक नहीं लिखती थी, अभी ये चेक लिखने का काम और बढ़ गया मेरे पास, क्योंकि तब टैली में ये फैसिलिटी नहीं थी कि चेक की प्रिंट निकाल सके, मैनुअल वर्क था। तो एक काम ऐड हो गया, मैं चेक लिखने लगी और मेरी प्रैक्टिस चालू थी। ऐसा करते 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 इम्प्रूवमेंट हुई। अभी P2 तो हो गया था, आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई थी। तो सर बोलते थे कि अभी तो तुझे डिग्री की जरूरत नहीं है, तू काम कर सकती है, तुझे बोल कितना काम चाहिए, मैं सब तुझे काम देता हूँ, अभी तुझे डिग्री की भी जरूरत नहीं है। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे तो डिग्री चाहिए, अभी डिग्री भी लेनी है मुझे। तो फाइनल के क्लासेस औरंगाबाद में जितने थे उतने मैंने स्टार्ट कर दिए, 1-2 क्लासेस। लेकिन मेरे दिमाग में एक फैट था कि नहीं, पूना जब तक जाऊंगी नहीं तब तक मैं क्लियर नहीं हूँ। तो मेरा जो काम देख के सर ने मुझे 1 साल की छुट्टी दे दी एग्जाम के लिए। पूना गई, 1 साल तक क्लासेस किए। और क्लासेस ऐसे थे कि दिन में सिर्फ 2 क्लासेस करना, अपने रूम पे आके स्टडी करना, बस इतना ही काम था। मैंने एक दिन में 2 से ज्यादा क्लासेस अटेंड नहीं किए। तो फाइनल के जब क्लासेस चल रहे थे तो और एक टीचर का नाम लेना चाहूंगी, जो थे CA विशाल भट्टर, जो आईडीटी पढ़ाते थे। और उनकी टीचिंग स्किल इतनी ज्यादा अच्छी थी, इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो आईडीटी जो मुझे कभी मालूम नहीं था वो मेरे पूरे दिमाग में जाने लगा था कि कस्टम क्या है। और तब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रिसेंटली आया था, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। तो उन्होंने इतना अच्छा सिखाया, इतना अच्छा सिखाया कि अभी मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं प्रैक्टिस आईडीटी में कर दूं, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, इसमें मैं प्रैक्टिस करूं। इतना अच्छा उन्होंने सिखाया। क्लासेस हो गए, उसके बाद मैं वापस आई औरंगाबाद और मैंने अपना फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया नवंबर 2011 में। जब अटेम्प्ट दिया और रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद पता चला कि उन्होंने मेरा रिजल्ट होल्ड कर दिया। होल्ड का रीजन था कि आर्टिकलशिप 1 मंथ की कम हो रही थी मेरी। तो वो कुछ टेक्निकल इशू था आईटीटी ट्रेनिंग का, तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो इसकी वजह से वो लेट आर्टिकलशिप ज्वाइन हो गई मेरी और 1 मंथ कम हो गया एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। तो रिजल्ट होल्ड हो गया। कम्युनिकेशन किया, 1 मंथ तक कम्युनिकेशन करती रही, लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने मेरा रिजल्ट नहीं दिया। अभी फिर से 0 से स्टार्ट करना था, क्योंकि फाइनल की स्टडी तो पता है आपको कि एकदम बोलेंगे महासमंदर जैसे, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, खत्म ही नहीं होती। अकाउंट वैसा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वैसा, कॉस्ट अकाउंटिंग वैसा। तो फिर से स्टडी स्टार्ट करनी थी, क्योंकि रिजल्ट तो नहीं दे रहे थे। तो सोचा ठीक है अभी फिर से स्टार्ट करेंगे। फिर से ऑफिस को छुट्टी ले ली और स्टडी स्टार्ट करती। स्टडी स्टार्ट की और मन से पढ़ाई करती थी, अभी समझ के करती थी। हो गया, मई 2012 का अटेम्प्ट मेरा आया फाइनल का और मैंने दे दिया। पेपर अच्छे गए थे, लेकिन तो भी लग रहा था कि 2 ग्रुप है और सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, एग्रीगेट मिलेगा नहीं। तो जब आया रिजल्ट था 31 अगस्त को, हाइट में प्रॉब्लम था तो वो एक दिन पोस्टपोन हो गया। वो 1 सितंबर को रिजल्ट लगा। और रिजल्ट जब आया तो मुझे लगता है कि नागार्जुन सर उन्होंने बोला कि बोलो मुझे आपका, और हमारी जो मुलाकात हुई थी वो भी ऐसे ही एग्जाम में हुई थी। उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा और मुझे फोन किया। फोन करने के बाद बोला कि ममता आपका रिजल्ट क्लियर हो गया, फाइनल के बहुत ग्रुप आपके क्लियर हो गए। और तब मेरे बॉस की जो लड़की है साइली छाजेड, वो भी मेरे साथ थी। तो मैंने बोला कि हाँ हाँ अरे वो भी मेरे साथ थी, उसका भी रिजल्ट चेक कर लो। तो नागार्जुन सर ने उसका भी रिजल्ट चेक कर लिया, तो हम दोनों का रिजल्ट क्लियर हो गया था। उसके बाद भागते भागते मैं सर के पास गई और मैंने बोला कि सर
हम दोनों फाइनल पास हो गए, हम अभी सीए बन गए। और तब जो खुशी थी वो खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और सर बोले कि ये बम्पर रिजल्ट है, मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। और जो पहले हुआ था वही आज वो पेड़े लेके आए और उनके हाथों से मुझे खिलाया कि ये आपके लिए, और मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी की वजह से मुझे इतनी खुशी नहीं हुई है, लेकिन आपके रिजल्ट की वजह से मुझे आज बहुत खुशी हुई है। और ममता जी, हाँ, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आपकी स्टोरी बहुत ही जबरदस्त रही है। आपने जो स्कूल में पढ़ा वहीं पे आप अभी ऑडिट कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट कर रहे हो। आपने यस, जो वहाँ पे जहाँ पे आप लड़कियों को बोलते थे कि काम नहीं कर सकते या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जल्दी चले जाते, वहाँ पे एक पूरा ऑफिस में खाली गर्ल्स रख रहे हैं अभी, मतलब पूरे वहाँ पे लड़कियां ही काम कर रहे हैं। वुमन पावर, पूरा वुमन एम्पावरमेंट का रियल सिंबल। अभी यस, तो मतलब जर्नी आपकी और भी ऐसे लग रहा है, इंटरेस्टिंग ही लग रही है कि सुनते ही रहे। बट आई थिंक अभी 12:45 होने आया है, हमें ये शो भी कंप्लीट करना है। तो बहुत ही जबरदस्त आपका स्टोरी लग रहा है। मैं विशाल जी को बोलूंगा कि आप कुछ समरी में बताइए, विशाल जी, और इनके बाद हम इनके कलीग को भी इनवाइट करेंगे कि उनके लिए 2 मिनट में कुछ बोले। ओवर टू विशाल भाई। यस विराग जी, थैंक यू। तो अब तक एग्जॉस्टिवली ममता जी ने उनकी स्टोरी स्टार्ट टू एंड तक समझा ही दी है। आई गेस ये जो जो मेन उनका क्रक्स था वो यहाँ तक का था। उसके बाद उनकी लाइफ प्रोफेशनल जर्नी एक्चुअल में स्टार्ट हुई। शी गॉट मैरिड एंड उसके बाद अभी वो MIT के जो पूरा इंटरनल ऑडिट संभाल रहे हैं, उनके पर्सनल क्लाइंट्स पे, प्लस वो मतलब उन्होंने जो बताया कि वो कहाँ अहमदनगर से स्टार्ट किया, उन्होंने औरंगाबाद आ गए, फिर कहाँ वो मसाला सेल करती थी, अब कहाँ वो एक एकदम इंटीग्रल पार्ट हो गई एक बड़े से यूनिवर्सिटी का। तो फिर अभी एक बार हम इनके कलीग से एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन, मतलब उनकी क्या थॉट्स है इस प्रोसेस पे। सो नागार्जुन जी, डू वी हैव देम नाउ? सूर्यवंशी जी, आप हमें सुन पा रहे हो? आप अनम्यूट कर सकते हो और आपका कैमरा भी स्टार्ट कर सकते हो, सूर्यवंशी जी। आप अनम्यूट कर लीजिए आपको। शाह सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर, हम तो चाहेंगे आपने कि आप 2-3 मिनट में ममता जी के बारे में कुछ बताइए। क्विक ओके रैप सर। अप सर। यस सर जो आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया इसके लिए आपके धन्यवाद कर रहा हूँ सर आपका। सर अभी ममता तो ऐसे सर, आपका तो ममता उसकी उनकी लाइफ के पूरा आपने आपको तो बता दी है। अभी जो हमारे पास काम कर रहे सर, मैं तो 2011 में इधर अकाउंट ऑफिसर हूँ, MIT कॉलेज में हूँ मैं। उसके बाद ममता मैडम 2013 में आए। तब तब से हमारा अकाउंटिंग ऐसा सिस्टमेटिक चलता सर। जो मास्टर ग्रुप बनाए उन्होंने, लेजर ग्रुप बनाए, उसके बाद बैलेंस का सिस्टमेटिक क्लीन बैलेंस है अपने पास। उसके बाद FRA का काम, इतना हार्डवर्किंग काम करते सर वो, कम से कम 10-12 घंटे काम करते सर वो बैठ के। उसके लिए एक ही अपना मनोकामना है सर, वो उनकी लाइफ में जो जो अच्छा काम मिलेगा उनको पूरा मिलना चाहिए सर। अपना एक अपने मराठी में एक मन है सर, अब वो बोलते हैं ना, मुझे कोई ना ये ना करता है, उनका एजुकेशन के लिए, उसको पढ़ाई के लिए बहुत डिफिकल्ट है ना उसके रास्ते में सर उनको। इसके लिए अपने एक मराठी में मन है सर, जो हिंदी में बताता हूँ। जो पत्थर काम के लिए नाकारा गया वही कौंसिल हुआ, वही कौंसिल हुआ। बोले तो अपनी कॉमर्स में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है सर, CA डिग्री, तो आप उसको सबसे हाईएस्ट डिग्री उन्होंने अपील कर दिया सर। इसलिए उनके यहाँ से उनकी लाइफ के लिए अपन मनोकामना करते हैं, उनको जो जो उनका सपना है सर खुदा से उनको पूरा होना चाहिए। इतना बोल के आपका धन्यवाद करता हूँ सर। नमस्कार। जी जी जी, धन्यवाद। उनकी लाइफ भी एक लोगों के लिए मैसेज है। उनकी लाइफ, हाँ सर। उनको मैसेज देने की जरूरत है, उनकी लाइफ भी एक मैसेज है पूरा, कि उन्होंने हाँ कैसे सर। मतलब पूरा, हाँ उनको सपोर्ट भी मिला उनकी फैमिली से भी। उनके पेरेंट्स को भी हम सलाम करते हैं कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी और बाकी हर एक चीज में। उनको खुद को भी इंडिपेंडेंट दिया कि आप आपका खुद का डिसीजन खुद लो। जब उन्होंने बताया सर्जरी का डिसीजन भी लेना है, हाँ सर। तो उनके हाँ सर। पेरेंट्स ने रोका नहीं और बोला नहीं कि उनका डिसीजन नहीं थोपा कि कराना है या नहीं कराना, जो भी है। उनको खुद को मतलब समझ भी आ गई थी कि वो चाइल्डहुड में नहीं थे अभी, तो एज उनको खुद को डिसीजन लेने दिया। तो हम ममता जी आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत सलाम करते हैं। और आपके पीछे जो सर्टिफिकेट दिख रहा है, जो CA इंस्टीट्यूट ने जो दिया है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपने जो लगाया है, वो बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है। आप हमेशा वो सर्टिफिकेट को देख के आपकी जर्नी हमेशा याद करोगे कि मैंने कैसे मतलब, जहाँ आपको अकाउंट्स भी नहीं आता था,
वहां पे आपने पूरा चीज सीखा और उसके बाद आपकी जर्नी सीए की जर्नी स्टार्ट की और कैसे कैसे मुकाम तक आपने हासिल किया। हैंडराइटिंग आपने कैसे डेडिकेशन के साथ उसको धीरे धीरे करके बहुत ही जबरदस्त बनाई। यहाँ पे उनको लग रहा था कि कहीं अपने को पेमेंट नहीं करना है, चेक बाउंस कराना है, वहां पे आपको चेक लिखवा देते। वो अभी एकदम पूरा सा चेंज हो गया उनका माइंडसेट भी कि नहीं इनको तो बहुत कुछ सीखा है। और जब आप पहली बार सीख के कुछ गए, आप और हो सकता है औरंगाबाद पुणे वहां से जब सीख के आए और आपने जब लेटर दिया आपके बॉस को, तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि वो मतलब आपने लेटर लिखा है या किसी और से लिखवाया है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट आपने जो किया फुल डेडिकेशन के साथ, उनको हम एज अ ऑर्गेनाइजर हम आपको सलाम करते हैं। इसीलिए हम आप ये शो का भी नाम ऐसे रखा है कि सुपर अचीवर। और जो आपको आपका जो स्टोरी था कि मतलब आपने जो फाइनेंशियली जो आपका था या जो आपको डिपेंडेंसी थी कि आप जॉब नहीं कर सकते या काम नहीं कर सकते ऐसे वाले, तो हमारा जो ये शो है वो यही नाम है हमारे शो का भी कि ट्रू आत्मनिर्भर, कि आप जो आत्मनिर्भरता की जो एक मिसाल कायम करते हो, तो हम आपको ये शो के माध्यम से सलाम करते हैं। हम आपके कलीग को भी इनवाइट करेंगे। आपके कलीग है नितिन जी। नितिन जी आप आपको अनम्यूट कर सकते हो और आप बात कर सकते हो। नितिन जी आप कहाँ से बात करोगे? Before Nitin ji jumps in, नितिन जी आप वहीं पे हो? ओके, सूर्यवंशी जी भी वहीं से है। नितिन जी भी यस यस। नमस्कार जी। नमस्कार नितिन सर और रिस्पेक्टिव्स। हेलो। Yes हाँ sir, हम you are आपको audible सुन sir. पा रहे हैं, आपको देख भी पा रहे हैं, आप बात कर सकते हो। मैडम के साथ मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ और मैडम का जो काम करने का तरीका है उसका एक टैगलाइन है सर, वर्क इज वर्शिप, और उसी के साथ हम काम कर रहे हैं और इससे हमें बहुत सारे मोटिवेशन मिलता है काम करने की। और मैडम की ऐसी तरक्की होती रहे, उनके साथ हमारी भी सबकी तरक्की होती रहेगी और हमें भी बहुत सारा मोटिवेशन इससे मिलता है। और इसलिए मैडम को सब ढेर सारे शुभकामनाएं सर। थैंक यू नितिन जी हमारे से जुड़ने के लिए। और मैडम आपको कभी डांटी तो नहीं है? कुछ काम नहीं हुआ तो कोई डांटी नहीं है? स्ट्रिक्ट है क्या मैडम? मैडम स्ट्रिक्ट है कैसे है? नहीं, मैडम तो डांटते नहीं है, लेकिन मैडम का काम करने का तरीका ही ऐसा है कि हमें वो काम की आदत हो गई है। ये आखिरी मौका है, बोल लीजिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी 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 आपने जो बोलने का मौका हमें दिया है तो बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। तो ये भी पता चल रहा है कि नॉट ओनली सीए तक की उनकी जर्नी, इवन ऑफिस में भी उन्होंने जो सिस्टम और प्रोसीजर जो सेट किए हैं उससे पूरा काम भी जो है वो पूरा स्मूथ हो रहा है। और लोगों को भी मतलब उनके कलीग या उनके बॉस या उनके सीनियर उनके साथ में जो भी जुड़े हुए हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, डिस्पाइट ऑफ उनको जो विजन का एक प्रॉब्लम है उसके बावजूद भी उन्होंने जो सिस्टम प्रोसीजर सेट की है, एक सबके लिए एक मिसाल है कि ऑफिस में स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, वर्क वर्शिप होना चाहिए और एक सिस्टम प्रोसीजर के साथ काम करना चाहिए। तो अपने वो जो साइड बहुत ही काबिल तारीफ है मैडम। सर मैं बोलना चाहती हूँ एक बात। अगर मेरे जो कलीग है उनको आपने जो पूछा कि मैं उनको डांटती हूँ या नहीं डांटती हूँ, तो सच तो ये है कि मैं उनको डांटती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डांटने के बाद उनमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी और जो आज काम कर रहे हैं उससे अच्छा काम वो करेंगे। और ऐसे होता है कि बोलने के बाद उनको भी लगता है नहीं मुझे ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो मैं डांटती हूँ और डांटती रहूंगी। काम करना है आज भी कल भी। वर्क इज वर्शिप। एम्प्लॉय भाग जाएगा, एम्प्लॉय भाग जाएगा। है तो इम्प्रूवमेंट के लिए डांटना जरूरी है और इम्प्रूवमेंट एम्प्लॉय भाग जाएगा। विराग भाई जस्ट टू कंक्लूड एक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट नागार्जुन जी, वो भी उनको जानते हैं पर्सनली, तो कंक्लूडिंग लाइंस आई वुड रिक्वेस्ट नागार्जुन जी लास्ट में 1-2 मिनट में रैप अप कर दे, लास्ट 1-2 मिनट्स में कुछ बोल के। जी 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 नागार्जुन जी प्लीज। अभी लोग मेरे को इंस्पिरेशन करके जानते हैं, मगर मुझे इंस्पिरेशन ममता जी से मिली, क्योंकि जब 2011-12 में थोड़ा सा मैं रफ फेज में चल रहा था, आर्टिकलशिप कंप्लीट हो नहीं रही थी क्योंकि एक एक दिन काटना और एक एक दिन भरना मुश्किल हो रहा था। और सच बताऊं तो मैंने ममता जी को सबसे पहली बार 2007 या 8 में देखा था
एग्जाम हॉल में, और देखने के बाद मुझे एक अंदर से एक आवाज आई कि इसका कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे मुझे ये समझ में आ गया था, एक अंदर से आवाज आती है अपने एक सबकॉन्शियस माइंड में कि इसका तो मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता इसका। और जब 2010-11 में फिर से एग्जाम हॉल में जब मुलाकात हुई और तब पता चला कि यार ये बंदी जो है वो फाइनल में आ गई, मैंने जब इसका हो सकता है तो फिर अपना क्यों नहीं हो सकता है? जिस उसके बाद में जब मुलाकात हुई और जब बातें हुई तो फिर उसके बाद पता चला कि इसको इंग्लिश का ई नहीं आता था, और मैं तो बचपन से इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा था। तो जब ये फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल निकाल सकती है बंदी, तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता? तो सलाम है ममता मैडम को, जो जिन्होंने डबल ग्रुप एक साथ निकाला, उतनी हिम्मत मेरी आज तक कभी हुई नहीं। तो इंस्पिरेशन को इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, इसका एक एग्जांपल है। और हमारे एक टीचर थे बहुत पहले, उनका एक कहना रहता था कि एग्जाम्पल सेट करने में तकलीफ बहुत होती है। तो एग्जाम्पल्स जो है, एक हाथ दो एग्जाम्पल सेट करना आसान है, मगर मल्टीपल एग्जाम्पल सेट करना, जैसे कि एक लेडी के ऊपर भरोसा रखना किसी ऑफिस ने या किसी स्ट्रक्चर ने, उसके बाद एक एम्प्लॉयर का एक एम्प्लॉय पे भरोसा रखना, और एक मराठी मीडियम के बैकग्राउंड के बच्चे को सीए क्लियर करना, ये सारे एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स है और सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स है। तो जो सीरीज ऑफ एग्जाम्पल सेट करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और जिंदगी झोंक देनी पड़ती है। तो उनकी मेहनत को सलाम, उनके फैमिली को सलाम, उनके माता पिता को सलाम, और अभी जो उनका साथ दे रहे हैं मनीष जी, उनके हस्बैंड, तो उनको भी सलाम। थैंक यू सो मच। विराट सर जी, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ है, तो 2 मिनट वो बात करना चाहेंगे आपसे। प्लीज प्लीज बुलाइए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्कार। नमस्कार, बताइए सर, आपके बारे में बताइए। मुझे इतनी खुशी होती है सर उनको देख के चेहरे पे। मैं हर आदमी को दूर से देखता हूँ कौन कैसा रहता, पूरे भावना से अच्छे, और सपोर्ट भी रहेंगे मैं जी लाइफ टाइम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सपोर्ट है इसलिए शायद काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है यहाँ तक। बहुत खुशी होती है और हमेशा रहेंगे। जी जी जी, जरूर जरूर। थैंक यू सर। ममता जी, अभी जो लाइव ऑडियंस है उनके लिए भी, और हम यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड करेंगे, तो उनके लिए भी, पूरे समाज के लिए और सीए स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा आखिरी में? सारे समाज के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि पेशेंस नहीं खोना है, चलते रहना है, मंजिल कभी ना कभी मिलेगी। और जो हम काम कर रहे हैं उसको, जो स्टडी करनी है सीएज में, तो उसको स्टडी को हमें अपनी हैबिट बनानी है, ना कि अपनी सिर्फ इच्छा बनानी है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे ड्रिंक की किसी को हैबिट है, तंबाकू की आदत है, तो वो जब नींद से उठते हैं तो उनको वो खाने की, जब तक वो खाएंगे नहीं या जब तक पिएंगे नहीं तब तक दूसरा काम करेंगे नहीं। तो ये स्टूडेंट ने भी एक आदत लगानी चाहिए कि जब तक मैं हर रोज 2 घंटे स्टडी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तब तक मैं सोऊंगी नहीं। एक टाइम उन्होंने डिसाइड करना चाहिए कि इतने टाइम तक स्टडी होना ही चाहिए, तो ही मुझे नींद आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो एक बात हमेशा उन्होंने ध्यान रखनी चाहिए कि हर काम सक्सेसफुल बनने के लिए करना चाहिए, ना कि अनसक्सेसफुल से बचने के लिए। जी जी। और एक मैसेज जो सीए बन गए उनके लिए है, क्योंकि अभी मैं सीए हूँ, तो सेम एप्लीकेबल फॉर मी आल्सो, कि जो कल बीत गया उसको नहीं देखना है, क्योंकि सीए फील्ड ही ऐसी है कि बजट जैसे जैसे आएगा तो अपडेशन आते जाएंगे, हमको वो चेंजेस देखने हैं, उसको सीखना है, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। सीए की डिग्री मिल गई यानी सब हो गया, ऐसे नहीं है, हमें तो हर रोज अपडेट रहना है। तो एक सॉन्ग याद आ रहा है, उसकी 2 लाइन गाना चाहूंगी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम है सीए फ्रेटर्निटी, हम है सीए फ्रेटर्निटी। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। और एक टैलेंट। ममता मैडम, हमारे एक लाइव ऑडियंस है रविचंद्रन जी, वो आपको सुन रहे हैं, वो आपको आपके नए दौर की कहानी लिखने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैडम को बोलो कि एक बुक लिखे,
वो बहुत सारे सीए स्टूडेंट को भी मोटिवेट करेगी। रविचंद्रन जी, हमने आपको अनम्यूट किया है, आप डायरेक्ट बात कर सकते हो मैडम से। Mamta ji, I am short of words to thank you so much actually for inspiring the whole India actually, and also I'm also thankful to the organizers for identifying such a person and then presenting to others. I'm not very good in Hindi, so a lot of only thoda volume. I am from Chennai. You can speak in English as well. Madam can understand English also. Yeah, sure, sir. No, I know. She has achieved a lot, and we are all humbled actually. We are all proud of you. And please write a book actually, so that it can benefit all the CA students in the coming years. Because your story, really, if one does not, if the tears do not come, then there is something wrong with the person. Such an inspiring story, and hats off to you, madam. Hats off to you. No words. Thank you all. Thank you all. Thank you, sir, for your time, sir. Okay, thank you. तो ममता जी प्लीज जरूर इसके बारे में सोचिएगा कि आप आपके हैंडराइटिंग से बुक लिख पाए या ऐसे कुछ पॉसिबल हो आपकी स्टोरी के ऊपर, तो बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी। तो आई थिंक नाउ ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं, हमें भी ये कंक्लूड करना है। तो मैं विशाल जी को बोलूंगा, प्लीज विशाल जी आप कंक्लूड करिए और हम ये वेबिनार को एंड करें। टू कंक्लूड, यस, मेरे साथ फ्रेम में 3 सुपर अचीवर्स है रादर, एक नहीं दो नहीं, एक फर्स्ट एपिसोड के सुपर अचीवर है, एक 4th एपिसोड के, और एक तो हर एपिसोड में जो एज अ होस्ट आते हैं, विराग भाई। सो ऑल इट्स rather a pleasure to share screen with such super achievers, and on behalf of audience and organizers, I would like to thank you very much, Mamta ji, Virag bhai, and Nagarjun ji, and all the guests which were here in the screen, and thank you very much on behalf of our team. Thank you. थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट संडे को अगेन 11 बजे मिलेंगे विद वन मोर सुपर अचीवर। सो जॉइन अस नेक्स्ट संडे 11 o'clock। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, एक रिक्वेस्ट है सर। यस प्लीज बोलिए। हमारी स्टोरी आपने सुन ली, लेकिन एक दिन ऐसा आना चाहिए कि हम आपकी स्टोरी सुने। तो जी, जल्दी जी, से एक वेबिनार अटेंड कंडक्ट कर लो कि जिससे हम आपकी स्टोरी सुन सकें। जी करते कोशिश करते। It is my kind request. जी थैंक यू Thank you, Vishal sir. Thank you, Nagarjun sir. Thank you.